Ji, um, we are at the moment looking at a situation where there doesn't seem to be any competition for the BJP. Nothing, sir. Nothing really working. I mean, I agree, the Congress has got 40% of the vote or whatever, but all that is neither here nor there. You can even win by one vote in India. Exactly. And that counts for a victory. Yes. We are a first past the post system. Unless and until, of course, we introduce something like, the system in Germany and the other European countries, where you get an X number of seats for an X number of percent of votes. Exactly. So, अब वो सिस्टम तो हिंदुस्तान में है नहीं. मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को मतलब हिंदी में समझा दूं कि भाई जैसे जर्मनी में आपको क्या परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिला है, उसके हिसाब से फिर आपकी सीट भी बढ़ती है. जो सीट आपने जीती वो तो अलग है, उसके अलावा जो आपका वोट परसेंटेज है उसके हिसाब से भी आपको सीट मिलती है. तो या तो वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कीजिए. तो लेकिन आई मीन टिल देन ये दिस इज लाइक trying to save oneself. It's a facetious argument. Let's be very clear. Each time the BJP used to lose, they only used to talk about, vote percentage. Now Congress is losing. Congress is talking about vote percentage. That's it. Pradeep ji. But vote percentage to a certain extent, it does show you what is the status exactly. I mean, where do you stand? To that, statistics does matter to show you what position you are and how much hard work more is required. Then they can have calculation the Hindu votes कितना मिला, Musliman votes मिला, OBC. तो वहाँ तक ठीक है sir. You need to understand what policies and which section of the society you have to hit. उसमें थोड़ा उजागर तो होता है. But then ultimately you have to win elections. You need to win and all the seats, and then you need to have a formula. Now Indira Gandhi's formula जो बार-बार आप discuss करते थे कि ब्राह्मण, दलित, मुसलमान. जी. तो now you need to come out with such an equation. Now BJP's agenda is completely clear. Hindutva hai, and they are banking on majority of the 80% voters और उसको consolidate करने में उनके पूरे strategies चालू है. So they have got their formula in place and the formula is working fine. Now Congress will have to do it. But Rahul Gandhi ने बहुत कोशिश किया. Rahul Gandhi tried his very best. He did tell that 84% है OBC, SC, ST, try to win it away from the Hindutva vote, but he never succeeded. Probably not succeeded because the Hindutva push of Narendra Modi, Amit Shah and JP Nadda were much more complex and much more, people could see it before them. They see things happening. जब वो मंदिर के बात करते लोगों को दिख रहा है कि काम हो गया. जब जाके मथुरा में जाके बात करते कि कृष्ण जन्मभूमि को भव्य बनाएंगे, तो लोगों को दिख रहा है कि हाँ, that man can do it. और जो एग्जाम्पल देते हैं कि काशी विश्वनाथ ने हमने किया, उज्जैन महाकाल को ठीक किया, केदारनाथ को ठीक किया, तो लोगों को दिख रहा है. Yes, he has worked for it. ये हवा में बात नहीं कर रहे. और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी, पिछले आप 20 साल या 30 साल की आप हिस्ट्री ले लें, आपको दिखेगा कि यही लोग, भले वो नरेंद्र मोदी जी हों, भले वो अमित शाह जी हों, बाकी जितने भी लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये तब से आज तक हर रोज मंदिर जाने वाले लोग हैं. जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, चुनाव के आसपास ये लोग मंदिर में दिखते हैं, नहीं तो इनमें से कोई नहीं जाता. प्रदीप जी, Exactly. राहुल गांधी जी मंदिर के आसपास दिखते हैं, शिव मंदिर के आसपास दिखते हैं, शिवालय के आसपास दिखते हैं, और ये कहते हैं कि भाई मैं जनेऊधारी शिव भक्त हूँ. सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों कहते हैं? हमें तो ये समझ नहीं आता, उसके पहले क्यों नहीं जाते? अब जैसे अभी आप तेलंगाना में जीते हैं, तो मेरी समझ में आपको तिरुपति जाना चाहिए. मतलब वहाँ you should go there and thank Balaji for the great blessings that he has bestowed on the Congress. So what if you have lost 3 states? How does it make a difference? But I don't see that happening. If that will happen just before the Lok Sabha, you will suddenly see Mr. Rahul Gandhi and all the other Congress fellows going to all sorts of religious places. Sir, I remember, and they will lose again. Bilkul sir. I remember Advani ji when he was very active in politics, and Ram Jethmalani especially very very active in politics. ये बोले कि हिंदुत्व के बात करना, हिंदुओं के बात करना, यानी आप सेक्युलर नहीं हो. ये पहले there was a policy and a thought process that was on that ये बात आप कर नहीं सकते. Then you are not secular. But now things have changed. People want you to talk this. People want you to follow this particular policy. What's in it for us?
What are you doing for us? And और we want दूसरी to see चीज it. क्या हो गया? The BJP has succeeded in making secularism a dirty word. सीधी बात है. बिल्कुल बिल्कुल. जो आज की तारीख में सेक्युलरिज्म की ज्यादा बात करता है वो हार जाता है. तो and who talks about secularism anyway? I mean, we talk about that. There's a paradigm shift to what it was in around 2000, early 2000s, and now it's totally different. And also, this is the age of instant communication. Yes, sir. You have the social network, you have the social media, and whatever you might say, at the end of the day, your social media plays a huge role in determining where you're going to stand and where you will be. That's exactly what has happened now. Now, for instance, when Mr. Modi says कि अगले साल 2024 के अंत तक या 2025 के शुरू में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो चौथे नंबर पर होगी, पीपल बिलीव इन, क्योंकि करके दिखाया ना, जैसे आप बोल रहे थे करके दिखाया भाई. Yes, आर्टिकल 370 35A रिपीट करके दिखाया, राम मंदिर बन गया है करके दिखाया. मतलब घर में घुस के मारेंगे, घुस के मारा, भले कुछ भी हो, आप कुछ भी उसको क्रिटिसाइज करें, अब एयरक्राफ्ट बन देर, भले झाड़ पे ड्रॉप किया बॉम्ब, किधर भी ड्रॉप, बट अंदर घुस के बॉम्ब डाल के वापस आए सर. और जिस प्रकार से आज आतंकी इंस्टेंट डेथ, अननोन लोग आके, किलर्स आके उनको मार रहे हैं जो देश के दुश्मन थे. यहाँ पर जो भले वो कनिष्का एयर इंडिया फ्लाइट के बॉम्बर्स थे या 2611 या अलग अलग या टेरर इंसिडेंट्स वाले जो करने वाले मास्टरमाइंड्स अपने आप एलिमिनेट हो रहा है. एंड टारगेटेड किलिंग जो बोल रहे हैं ऑफ टेररिस्ट, पीपल आर सीइंग एंड पीपल आर नॉट फूल्स. They know who's doing it. So let's ask Mr. Ali Daruwala. Daruwala sahab, namaskar. Namaskar Rajiv sir, Pradeep sir, good evening. So congratulations sir, you've done it. Fantastic. You have done it. So the entire Hindi belt now belongs to you. Amazing. And even in Telangana, your performance has been really good. It has been fantastic. From 1 seat, you've gone up to 8 seats. At one time, it looked as if you will get 10 seats. You got 8. So you entered the South too. Notwithstanding the fact that you lost Karnataka, but you're still there. In at least 2 states, Telangana and Karnataka, the BJP has a huge presence. And I believe the next step is going to be Kerala. Is that correct? Correct sir. Rajiv sir, if you remember, with very guarded words when we were asking about these 5 states, I said for the 3 states we were on the border, 50, 49, 51, we were trailing. I never said that we will lose. And in the South, I said I'm giving our party 15 years from now, but we will open an account and we will mark our presence in the South. And as far as Kerala is concerned, we are working. My party workers have lost their lives in the states of Kerala, and it's really been very shameful, but this party is not looking back. 15 years from now, you will see the Bhagwa in the south of India, sir. Fantastic, absolutely fantastic. So, but the only thing which is now of concern to a lot of people is that how is it that the names of the chief ministers of these 3 states have yet to be announced? In Rajasthan, for instance, we saw the spectacle of Vasundhara Raje going with about 30 of her loyalist MLAs who won into a 5-star hotel, and then Rajasthan leaders had to be sent over there to effectively free them, so to speak, after Mr. Amit Shah and Mr. Modi came to know about it. This is usually not expected of the BJP. Why is the naming of these CMs taking so long, sir? Rajiv sir, to set the record right over here, this moving the people to hotels, shifting them, and this defection and all that is not the culture of BJP. And over here, as we said, local politics plays a very, very important role over here. But not mincing with words, our party has worked and we have won on only and only one man's hard work and toiling, that is Narendra Modi ji. So local politics and the arm twisting is not going to work on us. Amit Shah ji is very stern in decisions that we take, and this arm twisting and this show of strength is definitely a no-no in my party, and definitely decision will be taken, and it will be taken at the highest order. So I believe Mr. Vaishnav is going to be he's the front runner, I believe, in
in Rajasthan along with Diya Kumari. Is that correct? That's what I've heard. I mean, I don't know. So there are lots of names, like we have seen the man who toiled and his name has never been mentioned is Gajendra Singh Shekhawat who happens to be from Rajasthan. Yes. But let me tell you something, all these names, all these member of parliaments who have resigned and who have been speculated of taking charge in Rajasthan or likewise any states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, it's just no speculation over here. On merit it will be given and you will be surprised, like anybody can be inducted. We have the number and we have a magical number now, and let's not even pinpoint to like saying like someone from the elected representative only might be. There can be anybody who can be parachuted, and over here we means business, and Modi ji has not minced with his words. We are working for the four group of people, that is the Mahila, the farmers, the Garib, and the people who are the have-nots of this country. So who becomes the CM and all is just secondary. What we deliver and how we win the states for the next 25 years. Our vision is 2047, sir, and not 2024 any other thing to that matter. So which means that as far as Madhya Pradesh is concerned, there is every possibility that even Mr. Narendra Singh Tomar might become the Chief Minister. 100% to you and to my guess, it can just be a guess. Gee. But the real minds, Parliament is going on, sir. That is of the utmost importance. Kashmir is the debate that is then on the chart today. There are very, very more important issues than selecting the chief minister of a state. The state is running, the bureaucracy is doing a wonderful job, and yes, it is of utmost importance. The CM needs to be appointed and the party will get to work. I think it's on this weekend you will see some results, sir. You know, what we are trying to understand, the Prime Minister, Darwala Sahab, and the Finance Minister told the entire Parliament how good the economy is working. She said the exports of commercial vehicles have increased to all-time high. She said our products can be seen in American supermarket desks. They can be seen on the shelves out there. That is what we are saying. The e-bill generation has reached the all-time high. That's what she said. The economy is doing so well, so fantastic. To reply to what Rajiv Shukla was trying to raise that matter, that Prime Minister Modi has not kept any of his promises. The Congress said that black money has not been bought back. Petrol and diesel prices, you promised rupees 50, the 40, that is not happening. Houses, you said by 2022 you're going to deliver. The Congress, now it has been delivered. Rupee versus dollar says, where you talked about a lot about rupee and dollar, the parity is not there. What you talk, 2 crore jobs. So the Congress list in the Parliament was never ending. This was, but Nirmala Sitharaman said, "This is the way we have evolved as an economy." How do you see Darwala Sahab? The Congress allegation, Modi has not fulfilled any of his promises, they say. Yeah, sir. Just rather than me saying, Rajiv sir just spoke on my behalf. He's a better spokesperson than me. The country from the fragile 5 to the top 5, the fact that our country has moved in that bracket itself is a certificate, is like taking a pat on my back itself. So the car market is booming, the IT sector is booming, production is all-time high. There is employment. There was a complaint that we have been getting that they are not getting workers for the factories to run at the full steam. In fact, Congress doesn't have any mudda. They do not have an agenda. They do not have what do they come up with. So they are far-fetched. They are bringing out these topics which are of no significance. Mallikarjun Kharge ji and Rahul Gandhi ji, as I told on your last show also, this Panoti was an Ashirwad, and well, as you said, Rajiv sir was smiling at me when I said this. Whatever Rahul Gandhi ji says, we have boomed and we have propelled with 3 times the expectations. Whatever Rahul sir and Sonia Gandhi ji has told to my Prime Minister, we have taken it as a blessing in disguise, as I said previously. But the fact remains India is performing at its all-time high. Yeah, but the fact remains that as far as the petrol and diesel prices are concerned, that is a matter of concern. I agree, people have gotten used to it. You know, paying 104.6 or so per litre for petrol and 94.26 for diesel. But the problem is that I don't really see how you can bring it down, because earlier, if you remember, we had a conversation about this and you had also said that very shortly we will give some relief over there. I don't think any relief is forthcoming. Not
not till May 2024. I don't think it's going to happen, because earlier there was the Ukraine war, and now that Gaza thing has started all over again. Right, sir. I don't think you can actually do that. And as far as LPG is concerned, Mr. Daruwala, the BJP promised a gas LPG gas cylinder at 450 rupees during the election campaign in Rajasthan. Are you going to give it? So coming to this, the SOPs that have been declared, the manifesto, I will tell you, BJP is not going to mince with his words. We are not going to be liars over here. If they're said, they will fulfill the. Yes, they did. Yes, sir, we will fulfill. If it's there in the manifesto, it has to be followed to the T. And coming to the petrol diesel prices, 105 and 96 is what we are selling at. Sir, I told you, just because there's an election, we were accused that elections are around the corner and you will slash the prices. I told my government we would prefer to sit in opposition rather than dole out SOPs and benefits and false promises. BJP is not looking out to make this country into a banana republic. As I told you, if need be, we will sit in opposition, but we will not sell this country to come back to power. And we stuck to our word, what we said in our manifesto. We have not given freebies like what the other parties said. And now I am asking the other parties through your esteemed platform that join hands with us. I have told on your show that KCR, KTR, this father and son need to work, need to reframe, need to strategize. And as you saw what happened in Telangana, the time is never late for Nitish Kumar ji to wake up and come, and this India alliance needs to be disintegrated, because if 2024 we need to see India in the top 2 countries of the world, and the manufacturer of the world, India, is there, and it can become. We need to strengthen the hands of our Prime Minister, Amit Shah ji, Narendra Modi ji, and the BJP government who's working relentlessly over here, sir. Daruwala Sam, I want to tell you, Amit Shah thundered in the parliament. He screamed on top of his head, he said, Pakistan occupied Kashmir, hamara hai. POK is ours. That's what Amit Shah said. Amit Shah went on to say that Nehru's double mistake, बोले कि जिस प्रकार से डबल एक तो सीज फायर 3 दिन पहले उन्होंने बुला दिया, 3 दिन रुक जाते तो पीओके का प्रॉब्लम ही नहीं होता. Then taking the matter to the United Nations, he said that was the other thing that Pandit Nehru said. And in 1980s, when the actual movement started against the Pandits, the people who were supposed to govern were in London. That's what he said. They're doing vacations in London, in England. Now he straight away attacked the Congress that your policies has destroyed Kashmir, and we, Narendra Modi ji unified it. बोले 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 constitution नहीं चलेगा. It has to be one, and Narendra Modi has done that. Now, how do you see this kind of Amit Shah's charge and challenge against the Congress? Pradeep sir, rhetoric and validating what Amit Shah ji said in the parliament today, I would say he was polite in accusing Nehru ji. If I had been in his place, I would say Nehru is a blunder. Nehru is disgrace to Kashmir. In fact, I was just thinking the other day, what happened in Kashmir with the Kashmiri Pandits was a blessing in disguise. Had they not been removed out of Kashmir, what happened in last 20-30 years, there would have been a sitting duck targets for this terrorists to shoot at them. I think it's a blessing in disguise. They came out as their lives are saved, and now under the regime and under the happiness of the BJP government, the Kashmiri Pandits are going back. I feel the amount of Kashmiri Pandits who are alive today is a blessing in disguise. Had they not left Kashmir at that point in time, they would have been sitting duck for this terrorist and this Pakistani blunder that has happened. Coming back to what Amit Shah ji said in the parliament today, yes, had he waited for 3 days, we would have won. Now, I would reassure to say that Pakistan occupied Kashmir, the territory that they are holding is again the 24 assembly seats are ours, and we are going to get it, and we are going to come with more 24 seats, and we are going to claim our land. And I am asserting, वो लिए सिवा भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ रहने वाला नहीं है. Ali Darwala Sahab, you are forgetting Gilgit-Baltistan. That is also ours. Not 100%. Just Pakistan occupied Kashmir. Even Gilgit-Baltistan, we have to get it back.
So That is Gilgit true. Balochistan is a movement. गिलगित that the बाल्टिस्तान president सर, not we बलूचिस्तान. cannot talk in an open सर forum. बलूचिस्तान is separate. बलूचिस्तान को बीच में मत डालिए सर. You will raise a diplomatic row over there. Balochistan is on the other side. This is Baltistan. No, this three states that we are talking about. Yes. Yes, इनकी liberation की बात चली है. वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, and very soon you will be realizing that they have joined hands with our country. They are part of our nation, sir. Right, and by the way, today is Submarine Day, Submariners Day. So salute to all the dolphiners. They call themselves part of the Dolphin Club of India. That is the Submariners. So today is Submarine Day. So our salute to them. They've done a wonderful job up till now. And tomorrow, by the way, is Rezangla Day. I don't know whether you remember this. Ali Darwala Sahab. Rezangla Pass, 1962, November 18th. Major Shaitan Singh, along with 114 Ahirs of the 13th Kumar Regiment, fought and fought and fought to the last bullet, last man. They lost 114 men but did not give up. They killed more than 1200 Chinese, and Rezangla is still with us. Remarkable, So- sir. Now the problem is, it took Narendra Modi, when he came back in 2014, to celebrate Rezangla Day properly. The Congress, very unfortunately, and I say this with the greatest of regret, had forgotten all our heroes, which is terrible, which is absolutely terrible. That's my opinion. I hope this government will not forget our heroes. Ali Darwala Sahab. 100%, sir. This talk of yours is really giving me goosebumps, and the lives that were laid down, and how we have fought to the last bullet, and how a handful of people could 1:10 ratio. This is the spirit of my Jawans. This is what we had done 2 years back, as you saw, that single-handedly with bare fist we set the Chinese back into their country. So Chinese was a imagination, a creation of Congress. I am telling you today, with the spirit and with the backing of my Prime Minister, China is a no competition to us, sir. I hope and pray we don't go on the offense, and we do not. I think the tiger, the dragon was just a roar and the fire was false. I pray to God we should not go on the offensive, and if at all it comes, if fist comes to a blow, I can assure you, sir, China is no comparison to my Jawan, sir. Absolutely Fantastic. true, which is on that I don't think there can be any doubt at all. Now, where people have doubts is this. I agree, in Rajasthan, in Madhya Pradesh, and even in Chhattisgarh, the manner in which Stalin Jr. attacked Sanatan Dharma, the manner in which some people from the Congress backed him. In fact, Mr. Karti Chidambaram and what's his name, Mr. Khadge's son? Junior Garge. Yes, Prashant Khadge. They were part of that seminar on how to destroy सनातन धर्म. तो सर हिंदुत्व के मैटर पे तो आप जीत गए, सीधी सादी बात है. बट नाउ कम्स द डिलीवरी. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब मामा जी ने डिलीवर किया 15 के 20 साल तक, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं सर, और आज आप उनको चेंज कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह डिड अ वंडरफुल जॉब. दैट्स माय ओपिनियन एनीवे, बिकॉज आई हैव गॉन ओवर देयर एंड आई हैव सीन हाउ ही हैंडल्ड द नक्सलाइट प्रॉब्लम, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मतलब he was the man who started at Salva Judum, and by the way, it is the Congress that went to the Supreme Court, filed various PIL against Raman Singh, and the Supreme Court ruled that you cannot harm ordinary villagers against the Naxalites. So, and what happened thereafter, but that's a subject for another day. All I'm saying is now comes the time to deliver. Ali Darwala Sahab, people will be watching कि राजस्थान में आप क्या करने वाले हैं. क्या राजस्थान में जो राइट्स हुए, जो रेप्स हुए, जिस प्रकार हिंदुओं को मारा गया, और उसी प्रकार जहां तक कि छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में हाउ द ट्राइबल्स हैव ऑल सपोर्टेड यू. नाउ विल यू बी एबल टू डिलीवर, अली दारोवाला साहब? Rajiv sir, Pradeep sir, my government is not vindictive, sir. As they said, क्या ED के आधार पे उनके सपोर्ट पे लेके अगर ये गवर्नमेंट आई है तो सर ये टोटल झूठ है. My government has come. I told you we will come on the flagship programs.
I always told you there was a time when there was total jitters and they were saying that we are losing, exit poll is showing something else. I told you, sir, I have got total faith on my Prime Minister's work and on the flagship programs that we have done. Sir, have some patience. We will come back on your show and we'll be having a different debate. Coming back to this 3 stages, as you're saying, the time has come where these people have performed like 4 terms, 5 terms, and 3 terms. It's a very long duration. Now is the time. I'm telling you, this party has an ideology. This party is not one man's best in. It has to give everybody a chance. But I'm again telling you, sir, it is not decided who is coming and who is going. This decision is taken in the highest order in the parliamentary committee where it will be decided. And definitely the deserving candidate will given a chance. And I'm telling you, let's not even stick to an electoral candidate. It can even be a parachuted candidate. But Modi ji and Amit Shah ji will take everything into consideration. And not only political parties, there are lots of organizations, NGOs whose views are taken into consideration. From the दूर दराज गांव के छोटे से छोटे आदमी से लेकर ये गवर्नमेंट इनके भरोसे पर हम जीत के आए हैं. And whoever we give the candidate is on the basis of performance, and we need the best out of these 3 states because these 3 states are the. Dadwala Sahab, Rahul Gandhi, even on defeat, he says he's magnanimous. He says, 4 states, we have got 10 lakh votes more than the BJP. That's what Rahul Gandhi says. And we have got 40% of the vote share. How can you regret having this? 40% of the people have voted for us, electorate, have voted for us, they've trusted the Congress and will bounce back in 2024. He says our schemes in Karnataka has been a success. Nobody can point a finger. The BJP is falsely accusing us of not fulfilling our promises. He says Shakti Yojana, Anya Bhagya, Anna Bhagya, Gruha Jyoti, Gruha Lakshmi. All these schemes have been fulfilled. Nothing has been left and it's a false propaganda. He says we have done well and there's nothing to regret about. 40% vote share. Darwala Sahab, Rahul Gandhi. Correct, sir. The vote share what Congress has got, we totally salute. जनता जनार्दन का जनादेश का हम बहुत आदर करते हैं. We respect what they have got, and even each and every vote counts, sir. There are a government that have lost on 1 and 2 votes over here. So what he has got, it is the mandate of the people. Though they have not voted for the BJP, but I can assure you, even the voters who are not voted for us will be taken into consideration. This government is not for pro-government or anti-government. We want this country to be the best country and each and every citizen, khushhali ka mahol. And these people who have not voted were taken for a ride, I believe. But they will wake up from their dreams. And as I told you, we are working in 25 years from now and BJP will come with thumping majority. As I said, ab ki baar 500 par. Remember my words, Rajiv sir and Pradeep sir. 500 par. That was no opposition left. Yes. That was but another charge. The Congress is बार-बार आपको बोल रहे कि मोदी साहब ने जो वादा किया वो अभी तक निभाए नहीं, चाहे वो black money हो या घर का निबंध. Now the latest Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi has been raising that, you know, the debts जो 1.96 lakh crore defaulters जो लोग पैसे लिए हैं and they have defaulted. They said they are willful defaulters to the tune of 1.96 lakh crores. That turns out to be 2,623 willful defaulters. मोदी साहब ने काले धन को भी लाने के बात किए थे, मगर देश के अंदर जो देश को बैंक्स को लूटे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है. Nothing is happening. You have not been able to recover this amount. That is what the Congress says. It's a serious charge. Darwala sahab. Correct, sir. Just answering to your point technically, just yesterday a bill has been passed in the parliament as to these people, these willful defaulters, as they say, who ran away from this country and totally siphoning off money and fooling my citizens will be brought over here. Cases you should not work on them thinking that they are not in the country and वो लोग वहाँ पे safe havens में बैठे हैं. Even if they are not there, court proceedings will happen over here. They will be punished and they will be convicted. And 1.96 lakh crores, which is to be verified now. Let me tell you one thing, sir. NCLT process is on. Money is going to come to each and every defaulter. Whatever is their bank guarantees, whatever their properties are being mortgaged will be gone into auction and people will be paid. But I do not want to get into this dirty mudslinging politics as to ये लोन तो आपके काल में दिया था, हमारे पीछे आप recovery के लिए लग गए. No, sir. Even if it has happened now, it is the responsibility. We are in the government now, and it is our
utmost responsibility to save and safeguard each and every depositor. Nobody should be shortchanged. We are totally and we are आपकी ईमानदारी के साथ हम लोग ये defaulters Yeah, but the only thing is that लोगों का पैसा there's a court process कोशिश कर रहे हैं involved. इसमें। Darwala Sahab, just a small clarification. I think the BJP spokesperson should be saying this. Why am I saying it? But anyway, the fact is, sir, there are about 6 or 7 people in London who have invoked protection from the British courts and from the British Home Office. In fact, the court has already passed orders with regard to Dr. Vijay Mallya, and the British Home Office, citing some confidential reasons, has decided not to extradite Dr. Vijay Mallya here. So it is not as if the government of India has not done its job. In the other cases, the court cases are going on. So you can't do anything about the court procedure going on at the moment in the UK. As far as Mr. Mehul Choksi is concerned, now that's a different kettle of fish altogether. I think we'll have to kidnap him and bring him back. There is no other way, because he's at the moment very safely ensconced in a Caribbean island and he's not coming back, irrespective of whatever you do. And it's not the fault of the government. Let's be very clear, because these guys, if you remember, they were granted all sorts of overdraft facilities during Dr. Manmohan Singh's time, with nobody to check, nobody to do anything. जैसे बाप का मालो कुछ भी लेके जाओ. It is not funny. So here the government has done quite well. I mean, you've got Christian Michel over here, you got a couple of other guys over here. As for the rest of the chaps are concerned, they'll follow. Perhaps the Congress would do better to look at some other points with regard to the BJP, I think. And Darwala Sahab, you can thank me. And I'm fascinated the way you are eliminating. I don't know who's eliminating the most wanted terrorist from across the border. Unknown men. Unknown assailants. Unknown 2611. It says unknown men. The Khalistani bombers who bombed the Air India flight after years and years when law could not take its own course and get them to justice. You got some assailants bombing them. Targeted killings of the terrorists. What's happening? Darwala Sahab. You think the economic offenders also might, Modi Sahab will do something like that, very strict, not killing but something else? No, Pradeep sir, I'll tell you, it is really very painful for the people who have put their life saving into this false promises and this scoundrels. I am really using guarded language against this defaulters, this robbers. I call them robbers, sir. People who have put their life saving for their daughters' marriages, for their children's marriages. They have worked for 30, 35, 40 years, and in the hope that they will get good returns, these people have looted these people and they have ran away. I am of the thought the bankers who gave them loan, they have mortgaged their properties and they have topped up their loans, even they should be booked. I am repeating, sir, I am requesting the finance minister even to bring to light these bloody bankers who have not gone through the documentation and gone on extending loans. And when we go to mortgage their properties and auction it, then we see that the loan amount of the bank is much more than the recovery that has to come, and where are we going to pay the depositors? So this is really very painstaking. Anyway, congratulations, Darwala Sahab. And they need to be punished, sir. Darwala Sahab, congratulations to you, to the BJP, to the Prime Minister. You won a great election. 3 states are with you. The Congress still manages to hold its own. So India is not going to be Congress Mukht Bharat. It's very much here. And in terms of the vote share, 40% vote share is still with the Congress. In terms of the total number of votes polled in all 4 states, including Telengana, where I admit the BJP did not have that much of a base as it did in the other states, the Congress has got in total 12 lakh votes more than you have. So the Congress is still around. So you still have to watch out as to what they might just get their act together. One never knows. But for the moment, I also wanted to ask about Nawab Malik, sir. if Darwala Sahab is willing. Darwala Sahab, क्या चल रहा है? कांग्रेस का कहना है कि ये सब शोबाजी चल रहा है, नौटंकी चल रहा है. देवेंद्र फडणवीस राइटिंग लेटर, Nawab Malik ये है, Nawab Malik वो है, to Ajit Pawar. बोले, you are a partner in the government, deputy CM, both sitting together. Why you are writing letter and displaying it to the whole media, Twitter में? No, you could have discussed before that Nawab Malik आने वाला है, he should not be sitting here. You want Nawab Malik also and you don't want him also. Darwala Sahab, if you want to just... So not missing my words, and my take on Nawab Malik may not be the party's stand, but the person who is involved with Dawood Ibrahim and links with people's bloodshed has got no place on the treasury bench.
Devendra Fadnavis ji's sentiments are well echoed in his letter, in his sprint. And Ajit Pawar himself is a very seasoned politician. He's not going to make a blunder because over here we have no time and we are in no mood to take any of allegations and mudslinging on us. Nawab Malik ji may be out on medical leave, but definitely he's not going to be on the treasury bench. I Right. can allow you. That's If wonderful. at all he does come, he may want to join Ajit Pawar. God knows what the thing is happening. But over here, Devendra Fadnavis ji has not minced with his words, and it's a total no. As we had spoken on your last show too, a man whose hands are stained with blood has got no place in the government, sir. Or anywhere near the assembly. But Darwala Sahab, as an extension. As Though an he's elected representative, he's representing 2 lakh people who have voted for Yes, him. he is. He He's is. got no place in my government, The sir. washing machine, the Congress is accused of washing machine, sir. Darwala Sahab. No, Pradeep sir. There's no washing machine. Nothing. It is the justice given to the voters who have voted these people to come to power, and these people thought that if we are here in power and if we come with the treasury bench with the ruling government, we can give justice to the voters who have sent them in the Vidhan Sabha, in the Lok Sabha, and they can get justice to the voters. So if they had thought of joining and coming with us, we were 150, now we are 200. With this government flagship programs, we can give justice and आप उनको न्याय दे सकते sir. But Darwala Sahab, one small question over here. Mr. Nawab Malik is on medical bail. He had argued in the Supreme Court that he's suffering from renal failure, liver dysfunction, and all sorts of other diseases, and that he needs immediate medical attention 24/7. That's why he was granted medical bail. But he goes to a prayer meeting of that Rajkumar Kohli, the gentleman who just died from the film industry, and now he's well enough to attend the Nagpur assembly. So, don't you think somebody should file an appeal with the Supreme Court and say perhaps his medical bail needs to be revoked? Mr. Darwala? 110%. Like the Lalit Patil case, his medical bail not needs to be revoked. It needs to be checked as to who granted this bail and who granted this leave. Really, everything needs to go in the depth, and it has to be totally scanned, sir. If he's so good and he's renal failure and kidney failure, as you're saying, I don't think a person should be in a position to walk. How is this possible? And why this show is being done? Whether it is being done also or no, as I'm taking it from you, sir. But I can assure you, all these things need to be examined, and it's really shameful. And the system of giving this parole and medical leave and all really needs to be examined, sir. And really, a lot of change needs to be bring in the judiciary system. And once I No, the judiciary has been very, very clear. It But fists, somebody sir. has to approach the judiciary. Stop, sir. Somebody has to approach the Supreme Court and say, hey, you granted this guy medical bail. He was suffering from renal failure. He was Yeah, it suffering should from be in all sorts ICU, of not in the Vidhan Bhavan. Yes. So how is he in the Vidhan Bhavan? How has he travelled all the way to Nagpur? How is he participating in the assembly? Yeah, he's shot on his own feet, sir. He's stupid. I think he's shot in his own feet, and Yeah. I think this will land him back where he belongs. I mean, he should be back in jail then. Let's be very clear. I mean, because I agree with you, Rajiv sir, Pradeep sir. Right. Thank you so much, Mr. Darwala. Great Thank you. pleasure. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind, Jai Hind. Har Har Mahadev. Jai Hind, sir. Thank you. Vande Mataram. Vande Mataram. But that does it. They did say he might be a dialysis case. They Yes. mentioned that in the Supreme Court. And at the moment, he's in the Nagpur Assembly, sitting right next to, sitting in the back row, of course, but in the among the MLAs with Ajit Pawar. Well, wonders never cease. He may have been cured. One never knows. Right at the moment with us from the Congress, Mr. Rakesh Shetty. So Rakesh Shetty Sahab, namaskar. Namaskar, Vande Mataram. Vande Mataram, sir, Rakesh Shetty Sahab. So, they made you observer for Telangana and you won Telangana for the Congress. Yes. Kya baat hai sahab? Yeah, lucky basket. Thank, Ye thank you. Sir, they should have sent you to Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh also. Congress would have won. See, in Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, if we see, in Rajasthan, if you see that the difference of vote was just 2%. Rajasthan is was 1.6%. Yeah, something, and Not even 2%. this one, Chhattisgarh was something like 4%, and Madhya Pradesh, yes, there is a big difference of 8%. Yes. But if you see the overall vote percentage in all 4 states, BJP has got something like 4 crore 81 lakhs vote, and Congress has got
4 crore 90 lakhs vote. That Yes. means 9 lakh people I voted for Congress party. That is more like 9 lakh vote is more like Yes. for Congress party, and it's a big thing. We are very much relevant as BJP and some Godi medias are showing that Congress is nowhere and not prepared for 2024. But it is proved to be wrong. If we see the data, people are with us. No, on that there is no doubt. I don't think you need even to talk about it. Let's be very clear. Anybody who says that the Congress is finished has to have his head examined. Let's be very clear. Sir, you are ruling in Karnataka, you are ruling in Telengana, you are ruling in Himachal Pradesh, plus you have governments in Bihar and in Jharkhand. I mean, come on. So, how can anybody say that you are not relevant or that the Congress is finished? That's being stupid. Yeah. And see, But maybe it is good for you that they think that. Rakesh Shetty Sahab. no, and one more thing I would like to take your attention to. Ji. Now it has been like 4 days. Yesterday, Revant Reddy has taken oath as Chief Minister of Telangana. Yes. But no one is talking about Madhya Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh. There is a very huge dispute going on there. Yes. And Godi media is not bothered and not questioning them why they are failing to give a Chief Minister candidate. 5 days, sir. 5 days. 5 days. Yeah? From December 3 till today, it is now 5 days. And you know, if you just recollect, when we have formed India Alliance, immediately all this Godi media used to ask, tell me who is the Prime Minister candidate. We want to know the candidate. But with BJP, Godi media is not bothered to ask them who is your Chief Minister candidate, because this time, very surprising to see, Bharatiya Janata Party has not given us Chief Minister face, not in Rajasthan, Chhattisgarh or Madhya Pradesh. In all 3 states. Absolutely true. Also. And by the way, the Speaker of the Maharashtra State Assembly has nothing to do with what Mr. Rakesh Shetty was saying. So I don't know why we had put him on. Richie, Pradeep, you wanted to ask something? Yeah, you know, आज जस प्रकार से अमित शाह जी छाती तबा के बोले कि आप सुनिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, it is ours, and we have been doing great things where this is concerned. And then he goes on, we want to make this a zero terror state, and we are making all plans to be total terror free. Article 370 was the right direction. बोले कि एक देश दो विधान दो प्रधान हो ही नहीं सकता. मोदी साहब आने के बाद ये पूरे सिस्टम बदल दिए. 2 झंडे इस देश में नहीं फैलाएगा, एक ही झंडा. मोदी साहब ने उसको किया. और नेहरू जी ने डबल जो बोले कि डबल जो नुकसान पहुंचा दिया देश को by having a ceasefire 3 days before and taking the matter to UN. Now you heard Amit Shah speaking and you heard the treasury bunches applauding his speech. How do you see it, Rakesh Shetty sir? You have to give me 5 minutes for this. Please go ahead, sir. We have time. See, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, and जब आपने देखा कि भारत के 2 देश बना, भारत एंड पाकिस्तान, और इसके साथ 567 प्रिंसली स्टेट्स थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीके मेनन, इनके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स को वो भारत के अंदर शामिल करना, और इन्होंने किया. क्योंकि आउट ऑफ 577 स्टेट्स, सिर्फ 13 स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स वेंट टू पाकिस्तान, रिमेनिंग सभी लोग इंडिया में शामिल हो गए. डिस्प्यूट थे 3 राज्य के, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद. जूनागढ़ was if you see the population, वो हिंदू बहुल इलाका था और उनका जो राजा था ये मुस्लिम थे जी. उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ट्रीटी ऑफ एसेशन का कर दिया उन्होंने जी. उसके बाद इंडिया ने अपोज किया, कहा कि दुनिया में एक ही देश है जो पाकिस्तान, जो धर्म के आधार पे बना है, और जूनागढ़ के जो लोग हैं 95% लोग वहां पे हिंदूस है. इसलिए वीके मेनन साहब एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे जाते हैं, जनमत संग्रह करवाते हैं. उसके बाद वहां के 99% लोगों ने वोट किया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, और वो भारत में शामिल हो गए. जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का है, वहां पे मामला उल्टा था. वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे
और वहां के जो राजा थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह जी। एंड उसके बाद राजा जो थे हमारे वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसका कारण ये है क्योंकि नेहरू जी डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो इलेक्शन की बात करते थे। तो राजा हरि सिंह जी को पता था कि मेरे यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, अगर चुनाव होते तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो धर्म के आधार पे मुल्क बना है, तो मैं अगर उधर चला जाता हूं तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई स्टेटस नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने चूज किया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। मगर अमित शाह किधर फेल हो गए कल के भाषण में, क्योंकि अमित शाह को नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री की किताब पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि इंडियन आर्मी का कमान उस वक्त सर रॉबर्ट लोकहार्ट के पास थे। ब्रिटिश आर्मी काउंसिल के पास इंडियन आर्मी भी थी और पाकिस्तान आर्मी भी थी। जब कुछ कबालियों, करीबन 10,000 कबालियों ने श्रीनगर के ऊपर हमला किया, जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया, तब राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगा। पंडित नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के पास चले गए, उनको बोला कि हमें आर्मी भेजना चाहिए, पाकिस्तान इलीगली कश्मीर में कब्जा कर रही है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा नहीं, आप आर्मी नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको जो आर्मी दिया गया है वो डिफेंस के लिए, और फिलहाल आपके ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा है, और जब तक जम्मू एंड कश्मीर आपके साथ ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन करती नहीं है तब तक आप मदद नहीं भेजोगे। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने वीके मेनन साहब को भेजते हैं, हरि सिंह के साथ एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से आर्मी, इंडियन आर्मी को भेजते श्रीनगर। उसके बाद कबालियों को हम कदेड़ने में मजबूती से कदेड़ देते हैं और एक जगह आ जाता है, वहां पे रेजिस्टेंस रहते हैं। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान आर्मी को भेजना चाहते थे कबालियों की मदद को, टू काउंटर इंडियन आर्मी, मगर वहां के जो जनरल थे, इसने बहुत फ्रैंक मैसेरी, वो भी ब्रिटिश ऑफिसर थे। इंडिया में जो जनरल सर रॉबर्ट लोकहार्ट थे, उनके जूनियर थे जो पाकिस्तान आर्मी को लीड कर रहे थे, और रोज ये लोग बात करते थे। सो इट वाज इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, बट दोनों के हेड ब्रिटिश ऑफिसर थे, बिकॉज अपने और पाकिस्तान दोनों के आर्मी को ब्रिटिश आर्मी काउंसिल गवर्न कर रही थी। सर, हमें इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, देश आजाद हुआ था, बट आर्मी उन्हीं के कंट्रोल में था सर। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी लड़ाई में शामिल हो, मगर उनको मना किया जाता है। 1.5 साल तक एक जगह पे रेजिस्टेंस हो जाता है, इंडियन आर्मी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो भी पीछे नहीं जा रहे थे। वही जो जगह है उसको अब हम लोग आज एलओसी कहते। तो अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, आप क्यों यूएन में चले गए। नेहरू जी, लॉर्ड माउंटबेटन देश में मौजूद थे, वो गवर्न कर रहे थे, और उनके सलाह के कारण नेहरू जी को ये मामला यूएन पे लेके जाना पड़ा। यूएन ने ये कहा कि दोनों कबालियों को वापस लेना चाहिए, पाकिस्तानियों को, और इंडियन आर्मी को भी वापस जाना चाहिए, और वहां पे जनमत संग्रह करना चाहिए। नेहरू जी ने The first UN resolution says very clearly, both the Indian Army and the Pakistani Army will withdraw to the pre-1948 line of control, but India is allowed to keep a defense contingent over there for its own security. That's what they said. That situation has to come. Number 2, all the territories captured by the Pakistanis in the interim will have to be returned. It's only then that a plebiscite can take place, not before. Correct. So नहीं तो इसमें नेहरू जी का ये स्टैंड था, बहुत क्लियर था कि बिकॉज ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हमारा ऑलरेडी साइंड है, तो यहाँ पे जनमत संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं, और उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का ये स्टैंड था जो क्लियरली दिखाता है
उनका ये कहना था, क्योंकि वहां पे शेख अब्दुल्ला को अपने प्रेसिडेंट अपॉइंटेड था, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा क्योंकि शेख अब्दुल्ला के होते हुए जनमत संग्रह नहीं कर सकते जी। करके ये डिस्प्यूटेड था। तो अमित शाह जी को मैं ये कहना चाहता हूं, उनको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान आर्मी दोनों 1949 तक इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी काउंसिल गवर्न कर रही थी और Sir, पाकिस्तान का आर्मी को if I remember correctly, the chief of the general staff, otherwise known as the commander in chief at that time, these days of course we have chief of staff. At that time it was commander in chief, was Sir Roy Busher, who was commander in chief of both armies. Sir Roy Correct. Busher, जी, correct. So absolutely true, जी. And if you read those books very clearly, whatever has happened, अमित शाह पता नहीं अपना नॉलेज कहाँ से लाते हैं, आरएसएस के 54 बुक से वो पढ़ते हैं और आ जाते हैं। नेहरू जी का इस देश में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कोई उसको मैच नहीं कर सकता था। वी वेर ऑल टाइम लो, डेट था देश के ऊपर, देश में कुछ बनता नहीं था। उसके बाद नवरत्न कंपनियां शुरू किया। ही हैज डन एवरीथिंग फॉर दिस, बिकॉज आपको पता है कोई बच्चा का जन्म होता है तो फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहला 1000 डेज में आप उसको जो खिलाते पिलाते हो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उसी पे वो सस्टेन करता है। उसी तरह देश का भी हालत उतना बुरा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कमान हाथ में लिया। सो आई विल नॉट एग्री, आई टोटली डिसएग्री विद अमित शाह। एंड आई वांट टू से, आज तो आपका सरकार है, आपको पता है कि जो उस समय हुआ गलत हुआ है, तो आप तो सुधार करिए ना, एलओसी से आगे बढ़िए। रेड क्लिफ का जो लाइन है, जो आपने एटलस मैप में जो बॉर्डर है वहां तक आप लेके जाइए। आप किसका इंतजार कर रहे? नेहरू जी ने गलती किया तो आप क्यों गलती कर रहे हो? आप लेके जाइए, देश को आगे बढ़ाइए, अखंड भारत बनाइए। पार्लियामेंट में आपने अखंड भारत का एक मैप लगाया इन्होंने, तो वहां तक लेके जाइए। अफगानिस्तान ईरान तक वो बॉर्डर लेके जाना चाह रहे, तो मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को कि आप लेके जाइए ना वहां तक, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज की तारीख में आजकल पढ़ता कौन है सर? कौन पढ़ता है आजकल? आप मुझे ये बताइए ना। ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण जो आपने दिया, सीधी सादी बात है। आज की तारीख में बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, व्हाट्सएप पे जो कुछ आ जाता है वो मान लेते हैं। पंडित नेहरू के बारे में ना जाने क्या क्या लिखते हैं। आदरणीय सम्मानीय फिरोज गांधी, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्री, one of the best journalists in the country, he didn't even bother about the fact that his father-in-law was prime minister. He still exposed the finance minister at that time. He still exposed Dalmia ji for the biggest insurance scam at that time. तो मतलब, और उनको आप फिरोज खान बुलाते हैं, कहते हैं फिरोज गांधी का नाम नहीं था, उसका नाम फिरोज खान था। खान बुलाते हैं जी। उसका गांधी। तो मेरा ये कहना, और उनको समझाते समझाते लोग थक जाते हैं। अरे भैया, and I can tell you myself, I myself have interviewed Firoz Gandhi's sister, Alu Dastoor, right here in 93-94 in Mumbai. Okay. तो मतलब क्या बोलेंगे सर? आज की तारीख में कौन मानता है? कौन मानता है आज की तारीख में? तो मेरा ये कहना है कि आपको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना सर। अपना जो सोशल मीडिया है आप भी जरा स्ट्रेंथन कीजिए। और सबसे बड़ी ताकत आपकी मालूम है क्या है? आपकी क्या ताकत है सबसे बड़ी, राकेश शेट्टी साहब? ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं सर, आपके साथ सच है। आपको सिर्फ सच बोलना है, आपको कुछ और नहीं बोलना है, और सच को रिपीट करना है। एंड यू हैव डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव इट, सो व्हाई डोंट यू डू इट? ये जरा समझाइए मुझे, व्हाई डजंट द कांग्रेस डू इट? बिकॉज नोबडी रीड्स बुक्स एनीमोर। करेक्ट। ये बताएं सर, क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, सही बात है। इवन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह पे जो रियल पोजीशन था उसमें काफी बेहतर कर सकते थे। पब्लिक हमारे साथ थी, पब्लिक सेंटिमेंट्स हमारे साथ थी, मगर वो जो इलेक्शन मैकेनिज्म आप कह रहे, वो हम और बेहतर कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। और अभी भी आप देखिए कि हम लोग का जो गांधी परिवार हो, कांग्रेस पार्टी है, आप ओवरऑल देखिए कि हम लोग के पास जो आपने कहा वही है, सच्चाई है, और हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी है वो बढ़ चढ़ के झूठ फैला रही, क्योंकि उनको कोई आधार नहीं है ना सर। जब आपको झूठ बोलना ही है तो आप कुछ भी बोल सकते, मगर हम लोग, मैंने जो एक्सप्रेशन दिया जहां पे मैं इनकरेक्ट, तो आपने रोक दिया, आपने कहा यहाँ पे करेक्शन है, वहां पे सुधार किया जाएगा, मगर ये सच्चाई है सर।
कि 1949 तक जब ब्रिटिश आर्मी काउंसिल था दोनों जगह पे, तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध कैसे हो सकता था? नेहरू कैसे डिसीजन ले सकते थे? लॉर्ड No, माउंटबेटन यहाँ पे थे। but at that time, if you read V.P. Menon's book, Integration of States, V.P. Menon साहब, who later on became secretary to Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel. Prior to that, he was secretary to Lord Mountbatten. Mountbatten, right? Yes, I know. he has stated very clearly, Sardar Patel insisted to Maharaja Hari Singh, document of accession पे साइन कीजिए, मैं आज फौज भेजता हूँ। अगर accession पे साइन नहीं करोगे, what is the legal basis of sending the army? How can I send? Correct. सीधी सादी बात है। और यहाँ पर there were two heroes that we seem to have forgotten. Two heroes. एक Major Sobnath Sharma, who saved Srinagar for us, who later on got the Paramveer Chakra, and then there was Brigadier Usman. Brigadier Usman, he was the man who recaptured all the territories that were earlier lost by him when the Kabylis attacked. And by the way, this I must say this for the information of our viewers. ब्रिगेडियर उस्मान की जो अभी कबर जो है ना, वो अभी दिल्ली में है साहब। प्रदीप जी, ये सुनने वाली बात है। जब उनकी लाश वापस आई, इंडिया गेट पे उनका नाम भी लिखा जी, जब उनकी लाश यहां पर आई, द एंटायर कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वॉक्ड इन हिज फ्यूनरल प्रोसेशन। करेक्ट। सो ग्रेट। तो सर ये सब तो आपको बताना है ना। बिल्कुल, ये सब तो आप बताएंगे ना, कांग्रेस बताएगी ना। आप 5 मिनट दे रहे हो इसलिए तो बता पा रहे। सर आप 1 घंटा लीजिए। We are not here to interrupt you. Sir, we are not here to shout you down. No, but if you see national channel and their anchors, वो तो बड़े लोग हैं। the moment we talk about Nehru ji and something positive, Modi ji ने आज बड़ा खबर लाया है। Immediately they'll jump and they'll switch the news to somewhere else. तो ये होता है सर, पर ज्यादा दिन बचा नहीं है। शेरी साहब, मगर कांग्रेस इटसेल्फ, आप ही के कांग्रेस लीडर्स आपके सबसे बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है। यू नो, प्रणब मुखर्जी's daughter, when she's coming out with a book, she says, नहीं चालू है, राजू बजाज जी उस बुक में ये लिखा है शेरी साहब, she's accusing. Let him finish the phone call. जी, Shetty Saab is getting a call. Must be from Rahul Gandhi. जी. So, I mean, he's just muted his phone, so we can't hear him. We can't hear him talk. Right. But the only thing is, Pradeep ji, the fact that this is Yeah, प्रणब मुखर्जी फॉर्मर कांग्रेस लीडर कृपा शंकर जी थे। मैंने उनको कहा कि राजू बजाज जी का शो चल रहा है, बोला प्रणाम बोलिए मेरी तरफ से। जय भवानी, हर हर महादेव। तो वापस आ रहे हैं सर, क्या वो राकेश शेट्टी साहब वापस आ रहे हैं कांग्रेस में? नहीं, वो अभी खुश है बीजेपी में। So I hope the BJP is also happy with him. Right. So Pranab Mukherjee's daughter in a book says her father was denied the prime ministership. She says Sonia Gandhi, her father told her that Sonia Gandhi will never make me the prime minister. Pranab Mukherjee told her. And in the very incident, she's talking about Pranab Mukherjee taking a walk in the early morning. Rahul Gandhi ji coming to meet him at 8 o'clock. He says Pranab Mukherjee usually doesn't meet anybody in the mornings. Rahul Gandhi arrived, but his appointment was in the late evening. तो जो प्रणब मुखर्जी का कहना है कि जो जिसके ऑफिस को एएम और पीएम का पता नहीं है, तो वो पीएमओ कैसे चलाएगा? How will they run the PMO? So he's just striking down the very chances that Rahul Gandhi can be the prime minister. That is your tall senior leader Pranab Mukherjee. How do you people within the Congress itself are pulling Rahul Gandhi down? Don't you think, Shetty sir? मैं पर्सनली राहुल जी को बहुत बार मिल चुका हूँ और हमने बहुत क्लोजली काम भी किया है जब मैं नेशनल यूथ प्रेसिडेंट था। एंड मैंने देखा इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट एंड मीडिया एंड सोशल मीडिया का सेक्शंस है जो क्या है कि उनके छवि खराब करने के लिए करोड़ रुपया खर्चा किया था। आज भी आप देखिए, राहुल जी आज हमारे पार्टी में कोई पद पे नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट खरगे जी है, खरगे जी के लीडरशिप पे कर रहे, मगर जैसे ही तीनों राज्यों में हार हुआ तो सब राहुल जी के ऊपर पहुंच गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए राहुल जी आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा जो इमेज मेकओवर हुआ है, और वो सही में वो सच्चा आदमी है सर। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलता हूँ, मल्टीनेशनल के लोगों को मिलता हूँ, और वो बताते हैं कि राहुल जी जो है वो सबको बहुत कम समय देते
वो व्यापारियों को दूर रखते, गरीबों को अपने पास रख बुलाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करते। तो राहुल जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी को आप बताइए ना, इनको क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के जाने की? इनको क्या किसी चीज की कमी आपको लग रहा है? कुछ है? कुछ जरूरत नहीं है। ये लोगों का दर्द वो समझना चाहते थे। दे ही वांटेड दैट टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम। दैट इज द रीजन ही हैज डन दैट। And see, and I'll tell you, in 2024, it is not a cakewalk for Bharatiya Janata Party. They are going to have a very tough fight with BJP and our alliance. जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ, क्योंकि जो आप 2013 में जो नरेंद्र मोदी का भाषण निकाल के देखिए, वो जिसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उसके बाद उनके जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये लोग जिनको नोटिस डाले, सब लोग बीजेपी में आ गए, उनके अलायंस बन गए। आज आप देखिए नवाब मलिक, जिसको ये लोग आतंकवादी बुलाते थे, आज आ गए वो अजित पवार के कैंप में बैठ गए, बीजेपी के अलायंस में। आप कुछ दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने तो चिट्ठी विट्ठी लिख के दी है ना। सर ये तो धोखा है। देखो, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं भरोसा करना चाहिए, बिकॉज जब ये नागपुर के मेयर थे, ही वॉज वेरी यंग, और तब वो कहते थे अलग विदर्भ नहीं बना तो मैं शादी नहीं करूंगा। ये बहुत फेमस था जी। शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, विदर्भ नहीं बना। तो ये सब कोकले बातें, इनके ऊपर ये जुमले, जो अमित शाह ने एक नया वर्ड दिया जुमला, उसके पहले तो मैं जानता भी नहीं था जुमला का मतलब। तो ये है, ये चुनावी जुमला है। एक महाविकास आघाड़ी में एक मिनिस्टर थे, उनका नाम थे संजय राठौड़। उनके ऊपर एक महिला ने आरोप किया था जी। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने चिल्ला चिल्लाकर, प्रेशर डालकर उनको मंत्री पद से हटवा दिया। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जैसे महाविकास आघाड़ी का सरकार टूट गई, पहले कैबिनेट में संजय राठौड़ को वापस ले लिया। आज आप देख लो, जिस नवाब मलिक को जेल भेजा, वो आके आपके बाजू में बैठ गया। अभी देवेंद्र फडणवीस ये बता रहे कि उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है। अरे गुजरात में चले जाओ, हार्दिक पटेल है, हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में थे, उसके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप था। आज बीजेपी में चला गया और एमएलए भी बन गया। वहां पे देशद्रोह का आरोप का वाला केस चल रहा है उसका, वो अभी खत्म हो जाएगी। तो मैं ऐसा समझता हूं, उधर आप आसाम में देख लो, वहां पे जो कांग्रेस के लीडर थे, उनके ऊपर ईडी का नोटिस है, वो जेल जाने वाले थे, आज वो वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो ये पॉलिसी है ना, वॉशिंग मशीन वाला, ये बहुत फेमस हो चुका है। बच्चे बच्चे को पता है कि जब अपोजिशन में है तो वो लोग भ्रष्ट, आतंकवादी, सब लोग भ्रष्टाचारी है। But Rakesh sir, do you really think that Mr. Devendra Fadnavis will actually agree to Mr. Nawab Malik sitting in the treasury benches after writing such a letter? He's written a formal letter, sir. He's not just said it. He's written a letter. Tell me one thing कि देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को कैसे एक्सेप्ट किया? खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 15 साल मंत्री उस इरिगेशन का उन्हीं के पास था, अजित पवार का, आज भी उनके पास है, जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला, मतलब फाइनेंस भी उनके पास है। फाइनेंस भी उनके पास। अच्छा, फाइनेंस उसके पास है। उद्धव ठाकरे जी के गवर्नमेंट में भी फाइनेंस अजित पवार के पास था। ये शिवसेना के जितने लोग गए, क्या बोल के गए? अरे अजित पवार हमको फंड्स नहीं दे रहे। आज वही व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठा है, हिंदुत्व भी खतरे में नहीं है और फाइनेंस का भी सब अच्छा हो रहा है आपको। सो ये सब हिपोक्रेसी है सर। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई इंडस्ट्रीज एक्वायर करना है या एमएलए को एक्वायर करना है या कोई पार्टी तोड़ना है, सिंपल फॉर्मूला है, 3 एजेंसी से इनको पहले भेज देती है और उसके बाद नेगोशिएट करती है। ईडी इनकम टैक्स को भेज देती है, उसके बाद उनसे नेगोशिएट करती है और उनको अपनी तरफ कर लेती है। So, according to you, Mr. Nawab Malik will be accepted as a member of the Ajit Dada group and perhaps might even become a minister. Is that what you're saying? I am saying, how did BJP accept Ajit Pawar? How did you accept Chhagan Bhujbal? How did you accept Praful Patel? What is Hassan Mushrif? इनके ऊपर तो वारंट्स पेंडिंग है। प्रफुल्ल पटेल का सीजे हाउस चले जाइए, ईडी का ऑफिस खुला है। मतलब
दे वेर इन द वर्ज, मतलब वो जेल के दरवाजे तक पहुंचकर सब मंत्री बन गए। अब बताओ। But you know, I tell you, Shetty साहब, you lost 3 states. Basically, Hindutva was the agenda. चाहे वो राजस्थान में कन्हैयालाल मैटर था, PFI was there, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ये सब. But आज भी you are meddling with हिंदुत्व. कर्नाटक का असेंबली से आप, विधानसभा से आप सावरकर के जो फोटो हटाने वाले बात कर रहे हो, you are again invoking हिंदुत्व. You are showing that you are anti-Hindu, you are anti. सावरकर was always an issue. Now महाराष्ट्र में you have a problem because उद्धव आज ऑलरेडी मोर्चा चालू हो गया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे आप बताओ ये सावरकर वाले इशू में आपका स्टैंड. तो any of these act whenever you touch, because last time शायद पवार साहब ने राहुल गांधी जी से बात होके ये निर्णय किया कि सावरकर will not touch, it doesn't benefit anybody, or we come to the losers end. तो ये सावरकर फिर इन्वोक हो गया. You don't think you are facilitating BJP's polarization? How do you see that, Shetty sir? See, this is a diversion. What I feel, भारतीय जनता पार्टी के पास जब डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, ना रोड है, ना आपने किया ना, ये कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, बोले कि विधानसभा से हटा दो वीर सावरकर का फोटो. देखिए ये बात वही मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए वीर सावरकर का लाइफ मैं आपके शो में पहले भी बोल चुका हूँ. अगर आप देखते हो ना तो 2 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फेज उनका जो है, जहाँ पे नासिक के कलेक्टर को उनके ब्रदर ने गोली मार देती है, गन वो लेके आते हैं, उसके बाद उनको सजा हो जाती है काला पानी की. ये बहुत ही हीरोइक है. मगर उसका जो सेकेंड हाफ है, जब जैसे वो माफी मांग के आ जाते हैं, उस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. क्योंकि माफी मांगने के बाद वो आंदोलन नहीं करते, वो लिख के देते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, देश के फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद वो नहीं जाते. देखिए कलकत्ता के बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा हुई थी. वो लोग अंडमान निकोबार से वापस आने के बाद लिख के आए थे कि हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को स्वीकार करते हैं और इसके बाद कभी आंदोलन नहीं करेंगे. इनको पता है, आप जानते हैं, करीबन 12 लोग ऐसे थे जिनको डबल काला पानी की सजा हुई. मतलब वो जाके आए, छोड़ दिए गए, फिर से उन्होंने आंदोलन किया, फिर से उनको काला पानी की सजा हुई. मगर वीर सावरकर जी के इसमें ऐसा नहीं देखते. फर्स्ट हाफ यस ही वाज हीरोइक. हमने भी बचपन को सावरकर जी की कहानियां पढ़ी एंड इट वाज वीर सावरकर. तो वो मुद्दे आप अगर देखते हो, हीरोइक भी है. सेकेंड हाफ में वो कुछ नहीं किए और खुद आरएसएस सावरकर के पूरा विचारधारा से दूर रखते थी. आज इनके पास कोई लीडर नहीं बचा है, इसलिए लोग सावरकर को लाइए. आरएसएस ने But the fact is, Rakesh Shetty Sahab, but the fact is, it is the Congress MLAs who have actually said that the photograph of Veer Savarkar must be removed from the Karnataka Assembly because what did Savarkar do for Karnataka? Why is his picture there? That's what they are saying. Correct. So is that necessary? All I am asking you is it necessary at the moment to alienate and antagonize your partner, the Uddhav Thackeray Sena? Why Not would you only want to do that, see, Savarkar is no more, and after he has gone, and after 30-40 years, we are discussing him. I think we should not do that. 56 years. He died 56 years ago. So I think, maybe you're talking about Congress MLA, but I don't agree with their position right now, because we should not do that, because वो परिस्थिति में उन्होंने हार्डवर्क किया है, सब किया है. टुडे बिकॉज सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, इसलिए आप उसका विरोध करना, ये मुझे लगता है गलत बात. I agree with you entirely. I agree. And second thing, how are you going to, शेट्टी साहब आपके पास बड़ा चैलेंज है, इंडिया अलायंस को आप साथ में कैसे रखोगे? शरद पवार जी क्लियर कट कहा कि I knew what was going to happen in the results of the 5 states. शरद पवार साहब ने I knew it. He says, why don't you make Nitish Kumar the convener? शरद पवार साहब का कहना है. And you were slightly, election के वजह से you ignored the entire India Alliance meeting. नीतीश कुमार के लोग कहने लगे कि ये चाय पानी का सेशन होने लगा. ममता बनर्जी was slightly offended. अखिलेश यादव. तो how are you going? You got less time. You got less time. How are you going to keep India Alliance together? Seat sharing, strategy, common agenda, common minimum program. कैसे होगा, शेट्टी साहब? You are positive on that. See, the thing is, कांग्रेस हमेशा बीजेपी का विरोधी रहा है, और अगर आप इंडिया अलायंस देखते हो तो कांग्रेस के साथ जो लोग भी आए
ये कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हो चुके हैं। जैसे और अभी आप देखिए कि जैसे जैसा 2024 का चुनाव आएंगे, तो अभी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो भी तोड़ तोड़ के हमारे पास आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिसी रहा है, अपोजिशन से बाद में लड़ेंगे मगर अब जो हमारे साथ है उनकी पार्टियों को तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अकाली दल को देखिए, उन्होंने कमजोर कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार का तोड़ने का कोशिश किया। रामविलास पासवान में उनके भाई और उनके लड़के के बीच में लड़ाई लगा दी। शिवसेना को तोड़ दिया। अभी एनसीपी शरद पवार जी को आइडियलाइज करते थे, मोदी जी कहते थे यार ही माय मेंटोर एंड ऑल, उसकी पार्टी को तोड़ दिया। और वो हमारे उत्तर प्रदेश में एक अपना दल करके उधर 2 फैक्शन बना लिया। कश्मीर में मुफ्ती सैयद उनके साथ उन्होंने अलायंस किया, बाद में वहां पे भी गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो इनका एक इतिहास रहा है कि अपोजिशन को कम नुकसान करेंगे मगर अपने अलायंस को ज्यादा करेंगे। तो जैसा 2024 आएगा, ये सभी लोग एक साथ आ जाएंगे इंडिया अलायंस के अंदर और हमारी टीम काफी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। सर, चलते चलते would you care to comment on what has happened to Mahua Moitra? She has been expelled. It is sad and see this मोइत्रा जी के साथ जो हुआ है वो कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ हुआ। बिकॉज इट इज वेरी एविडेंट नाउ कि राजा का जो जान है वो तोते पे है। मतलब जो भी अदानी को हाथ लगाएगा उसको तो एमपी के हाथ धोना पड़ेगा। एंड दैट व्हाट इज हैपेंड, बट आई थिंक शी इज वेरी वोकल एंड शी विल फाइट बैक एंड वी आर विद हर। Yes, I know. The entire, in fact, more than anybody else, in fact, the Congress MPs defended her more than anyone else. Yeah. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे राकेश शेट्टी साहब के, अगर पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ अगर प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए तो फिर किसके साथ होगा सर? किसके साथ होगा? मतलब कोई आपको एक्यूज करता है, उसने एफिडेविट दिया है, मान लिया, चलो ठीक है दिया भाई, उसको सामने तो लाना चाहिए ना, क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो उसका। अब दर्शन हीरानंदानी है, हमारे मित्र हैं बड़े, निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके साहबजादे ने महुआ मित्रा के खिलाफ एफिडेविट दिया है। अब दर्शन हीरानंदानी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए था। बिल्कुल, वो दुबई में है, वो तो आएगी नहीं जी, वो नहीं आए, वो सिर्फ हमारी एम्बेसी में गए और जब वहां जाके उन्होंने एफिडेविट दे दिया। अब जस्ट ऑन दैट बेसिस तो एफिडेविट तो आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ किसी के खिलाफ, उसमें क्या है? और राजीव जी आपको बोल दूं कि हीरानंदानी बड़ा ग्रुप है, बट उनके ऊपर भी ईडी और जी है ना, यहाँ पे ईओडब्ल्यू के केसेस चालू है। और तो खुद वो बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं वो, ये देखिए ना, सुनने वाली बात है, वो खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सब अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने काम किया, महुआ मित्रा को यूज किया अडानी ग्रुप के खिलाफ ना। करेक्ट, तो मतलब द रॉन्ग डूइंग लाइज देयर। करेक्ट, इफ महुआ मोइत्रा इज गिल्टी, सो इज मिस्टर दर्शन हीरानंदानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ जरा सर जरा अनफेयर सा लगा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। थैंक यू वेरी मच। In any event, thank you very much, sir. Rakesh Shetty Saab, so nice of you for joining us, and congratulations for your government in Telangana. Hopefully, you will do much better in the Lok Sabha elections to come, and I hope the Congress, as we discussed over here, will also start spreading and distributing and repeating the truth all over the country about Pandit Nehru and Mrs. Gandhi. I hope that happens. Please. Yeah, definitely we will do it. Thank you very much, Rakesh Shetty Saab. Namaskar. Thank you. Namaskar. Vande Mataram. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Pradeep ji, it's going to be tough. you know, if I were to talk about why did Mr. Amit Shah say that, it would have taken a very long time. Yes. Because the fact is at that time, Major General Thimaiya, who had been sent after these raiders, he had specifically asked for, वो जो 3 दिन की बात कर रहे हैं ना, Yes, yes. कि 3 दिन पहले उन्होंने सीज फायर कर दिया। जनरल थिमैया ने बोला था मुझे सिर्फ 3 दिन और दे दो, आई विल रीच रावलपिंडी फ्रॉम, और आई विल एटलीस्ट रीच सियालकोट, एंड द पाकिस्तानीज विल हैव टू सू फॉर पीस। वो उनको नहीं दिए गए, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। पंडित नेहरू वाज sick and tired of all the bloodshed. He said he didn't want any more people to die. That's what he said. Now the problem is, this is history, and what has happened has happened. You can't change that. The fact remains
that there is a Pakistan occupied Kashmir. The fact remains, we had an opportunity to take it over. The fact remains, we did not do so. Which is why the problem still remains. On that there is no doubt. Right, and at the moment with us, our old friend from the Aam Aadmi Party, Mr. Mahmood Deshmukh. Mahmood Deshmukh Saab, Namaskar. Namaskar. How are you, sir? How are you? How are you, sir? कैसे हैं? Fine, fine. महमूद देशमुख साहब, चलिए अब चुनाव के रिजल्ट तो आ गए। आम आदमी पार्टी की तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड भी नहीं था, कोई अपेक्षा भी नहीं थी कि कुछ खास परफॉर्मेंस रहेगी। मतलब वो तो ऐसा था कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करनी थी कि भाई हम लोग भी हैं, ताकि अगले चुनाव में लोग याद रखें कि भाई आम आदमी पार्टी। और एक दो जगह पे वैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ऐसी बात नहीं। एक दो जगह पे आपके जो कैंडिडेट है, दो कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में, आपका जो कैंडिडेट है वो नंबर 3 पर आया है। सो विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, विच इज़ वेरी गुड इन फैक्ट। लेकिन सर आप ये बताएं, आपको लगता नहीं है ये तीनों चुनावों के नतीजों को देख करके कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, अल्पसंख्यक वर्ग जो है, और बाकी भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको स्ट्रेटेजिकली नीति से उनको वोट करना चाहिए? आपको लगता नहीं है ऐसा? क्योंकि अभी क्या है कि क्योंकि वो वोट तितर बितर हो जाता है, उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिलता है। महमूद देशमुख साहब बताइए। देखिए ऐसा है, तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए, विशेषकर तेलंगाना में माइनॉरिटी ने वन साइडेड वोटिंग किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। उसका नतीजा सामने है, बिल्कुल। और इसमें कांग्रेस को उसका फायदा मिला। आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदू कार्ड खेला, कई जगह पे उन्होंने हिंदू कार्ड खेला, जिसका नतीजा ये हुआ वहां पे मतलब हिंदुइज्म के नाम पे वोटिंग हुई। तो लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, धर्म के नाम पे कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वोटिंग नहीं होना चाहिए। ये इस देश के लिए भी नुकसानदायक है, इस देश के संविधान के लिए नुकसानदायक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक। वोटिंग हमेशा विकास के नाम पे होनी चाहिए, आइडियोलॉजी के नाम पे होनी चाहिए। अब ये दुर्भाग्य है कि धर्म के नाम पे वोटिंग हो रही है, और जिसका नतीजा अभी आपके सामने है। उसके साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे वोटिंग होने के वजह से इकबाल मुकुंद आचार्य जो एक विधायक चुनकर आए हैं राजस्थान से, जिन्होंने चुन के आने के साथ अभी तो शपथ नहीं ली मेरे ख्याल से उन्होंने। नहीं, अभी शपथ अभी हुई नहीं है। हाँ, शपथ हुई नहीं है। उन्होंने जाके वो कहीं मीट की बाजार में जाके, है ना, मीट की दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी। तो ये मतलब है, इस तरीके से मतलब हालात है कि मतलब आपका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपका विधायक जब धर्म के नाम पे चुन के आता है तो वो सिर्फ एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को उन्होंने माफी मांगी है शायद, और वहां पे वो बालकनाथ जी ने अभी माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जरा गलत इन्फॉर्म किया गया था, वो भी अपने ही लोग हैं ऐसा करके बोला था, कुछ बोला। अरे सर, लेकिन आप विधायक बने हैं, आपको बन के भी 4 दिन नहीं हुए हैं, इसके बाद में आप अगर वहां के लोक प्रतिनिधि है तो आप सभी समाज के लोक प्रतिनिधि है, आप किसी एक विशेष समाज के लोक प्रतिनिधि नहीं है। और लोक प्रतिनिधि बनने के बाद में आप किसी पार्टी के नहीं रहते, आप पूरे उस विधानसभा के सभी पूरे मतलब जनता के आप लोक प्रतिनिधि हैं। और जो गलत है वो गलत है, इसको कानून से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से जैसे कोई गुंडा जाके करता है, गुंडा मवाली जो हरकत करता है, वो हरकत आपने की, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये इनकी राजनीति किस तरीके से है, ये किस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहते हैं। केजरीवाल जी, देशमुख जी, केजरीवाल जी, मैं भी केजरीवाल कैंपेन आप लोगों ने जबरदस्त चलाया दिल्ली में, मैं भी केजरीवाल, और वहां से रिजल्ट आपको लोगों का समर्थन बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रहा है कि केजरीवाल जी नंबर 1 अरेस्ट नहीं होना चाहिए, लोगों का कहना है अरेस्ट नहीं होना चाहिए। मगर अगर अरेस्ट होता है तो जहां केजरीवाल है वहीं से सरकार चलाइए। वो लोग एक मैंडेट इस प्रकार से रेफरेंडम बोल सकते हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप जहां हो वहीं से सरकार चलाओ, हमको केजरीवाल चाहिए, और ये कैंपेन में भी केजरीवाल सक्सेस होता देख रहा है। देशमुख जी,
देखिए प्रदीप जी, इसका मतलब साफ जाहिर है कि दिल्ली की जनता अरविंद जी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, अरविंद जी पे ज्यादा विश्वास करती है। और ये इसलिए है कि मतलब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लोगों के विकास का काम हुआ है। वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, महिलाओं का ये मसला हो, या बुजुर्गों को जो मतलब तीर्थ यात्रा कराई जाती है, ये सब बातें हैं, या एजुकेशन का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, तो दिल्ली में बहुत ही अच्छे तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। इसीलिए दिल्ली की जनता ये कहती है, देखिए हम लोकतंत्र में जीते हैं, ये जो सत्ता है, ये लोकतंत्र जो है वो लोगों की सरकार है, तो लोगों के बीच में जाके ये पूछना कोई गलत बात नहीं है। हमने लोगों से मैंडेट लिया है और मुख्यमंत्री बने हैं, तो वापस से एक बार अगर ये केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं, ये तो लोकतंत्र को मानते नहीं है, तो ये अगर गलत तरीके से अगर कोई काम करना चाहते हैं, अगर अरेस्ट भी कल करेंगे, हम लोगों के बीच फिर जाएंगे। हम तो कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में हम जाएंगे, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे तो उल्टे चोरों कोतवाल को डांटे वाली कहानी है। जो चोरी करता है, चाहे चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। एक चीज आप पूरे देश पे देख लीजिए, देश के हालात ऐसे हैं, जो गलत है, जो इनके साथ जाएगा वो मंत्री बन जाता है, जो इनका विरोध में रहेगा उसको जेल जाना पड़ता है। मतलब ईमानदार आदमी जेल जाता है और बेईमान आदमी इनके सरकार में बैठता है, इनकी पार्टी में आता है। सीधा सीधा पूरे देश के अंदर का सिनेरियो देख लीजिए। तो जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठे हुए हैं। वो आप महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, या बिहार ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, या मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो पूरे देश का ये हालत है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं अलग अलग पार्टियों से, ये उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपने साथ ले लेते हैं। जो इनके वॉशिंग मशीन में चला जाता है वो पवित्र हो जाता है, और जो इनके साथ जो ईमानदार आदमी है वो क्यों जाएगा? जो ईमानदार आदमी है वो इनसे लड़ता है, तो ये उसको उल्टा मतलब झूठे केसों में फंसा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं बार बार कह चुका हूं, इनसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये कोई अच्छा काम करे। आपने महुआ मोइत्रा को भी सपोर्ट किया है, बोले कि दिस इज इनजस्टिस हैपनिंग, टीएमसी के एमपी मोइत्रा जी। तो आपने आम आदमी पार्टी ने कहा वी आर स्टैंडिंग विद महुआ मोइत्रा, बोले कि ये गलत चीज है। जिस प्रकार से इंक्वायरी करके राहुल गांधी से शुरू कर दिया था, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, घर से बेघर कर दिया राहुल गांधी, इस प्रकार से हैरेसमेंट कर रहे हैं, टारगेटिंग ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर को टारगेट कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के बहुत सारे आपके टॉप के लीडर्स को जेल में डाल दिए, अभी तक जेल में है, अभी तक जेल में है। केजरीवाल जी पर भी शायद जिस प्रकार से चल रहा है केजरीवाल जी, अभी महुआ मोइत्रा है। तो ये आपका टोटल सपोर्ट है टीएमसी एमपी को, आम आदमी पार्टी? देखिए ऐसा है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सुना होगा कि जो दर्शन हीरानंदानी है उनको बुलाया नहीं गया, उनकी गवाही ली नहीं गई, उनको सुना नहीं गया, है ना। जो एक्यूज है, जो कंप्लेनर है, जो कहता है, जिसको शिकायत करने वाला है, उसको तो सामने लाइए, उससे तो समझिए, उसको नहीं सामने बुलाया जाता है। और आप मतलब डायरेक्ट कार्रवाई करते हो, वन साइडेड आप कार्रवाई करते हो। ये सिर्फ ऐसा है कि जो ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, ऑपोजिशन पार्टियों का मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर तरीके, हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जहाँ सीबीआई का इस्तेमाल करना है सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ईडी का इस्तेमाल करना वहाँ ईडी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं है तो कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट लेकर, जैसे राहुल जी को मतलब इन्होंने मतलब सस्पेंड किया था, टर्मिनेट किया था, उसी तरीके से मोइत्रा जी को मतलब उन्होंने किया है। तो ये लड़ाई देखिए, अभी बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, 6 महीना बचा है, इनका वक्त अभी खत्म होते आ रहा है। तो ये और बौखलाएंगे और ये इस तरीके से हरकत करेंगे। ये सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं डराने की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टनर डरेगा नहीं, इनसे और बड़ी मजबूती के साथ में हम इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं। और जो जाने था, जो लोग गलत थे वो इनके साथ है, ये सुनिए। लेकिन अभी आपको लगता नहीं है महमूद देशमुख साहब के जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट माइनॉरिटीज को लेकर के, बाकी सबको लेकर के सबका एक मत होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली बार भी हम लोगों की ये बात हुई थी कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, ठीक है साहब, उसके बाद वो क्या नाम है उनका, जस्टिस साहब जो हैं वो उनके नाम से
जी रंगनाथ मिश्रा जी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जिन्होंने दिल्ली रंगनाथ मिश्रा आयोग, हाँ 1984 राइट्स के ऊपर भी उन्हीं की रिपोर्ट है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब। उनकी रिपोर्ट जो है वो तो लोकसभा के पटल पर भी रखी गई है और उसमें एक्शन भी सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पर मुसलमानों को, बुद्धिस्ट को, सिख्स में जो लोअर कास्ट है उनको, बाकी सब लोग जो हैं उनमें सब लोगों को यहाँ रिजर्वेशन देना चाहिए। आपको लगता नहीं कि उसके लिए सारी पार्टियों को अग्रसर होना चाहिए? ये कहना चाहिए कि भाई देखिए 24-25 करोड़ की आबादी अगर पीछे रह जाएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? महमूद देशमुख साहब, सोचने वाली बात है, बताएं। ऐसा है बजाज साहब, जब अभी जो आपने कहा कि माइनॉरिटी के इश्यूज पे बात करना चाहिए इंडिया अलायंस, मैं समझता हूं कि आज माइनॉरिटी मेजोरिटी ये सब सेकेंडरी बातें हैं। आज संविधान बचाने की जरूरत है, ये देश बचाने की जरूरत है ना। आज जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ये ना तो मेजोरिटी के हित में काम कर रहे हैं ना माइनॉरिटी के हित में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अदानी के लिए काम कर रहे हैं, ये चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी में वो कह रहा हूं मैं कि ये 15 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए हैं। आप सोचिए, और यहाँ पे किसान आत्महत्या करता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना। कोई मतलब ये किसके है? ये किसी समाज के नहीं है, ये आम जनता के नहीं है। किसान परेशान है, जवान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। महिलाओं पे अत्याचार इनके राज्य में बढ़ गया है। अभी यूपी का, परसों ही वाला यूपी का रिपोर्ट आया हुआ है कि सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो हर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। तो आज जरूरत जो है कि वो संविधान बचाने की है, क्योंकि संविधान बचेगी, देश बचाने की है। तो संविधान बचेगा, देश बचेगा, तो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो या SC ST OBC हो या सभी समाज के लोगों के बारे में मतलब आने वाली सरकार काम करे। प्रदीप जी, देशमुख जी, आम आदमी पार्टी पहली बार जिस प्रकार से बजट पेश करने वाले दोनों MCD और स्टेट में, तो उनका कहना है कि हम हर वार्ड में जाके लोगों से चर्चा करेंगे कि आपको बजट में क्या चाहिए। हर असेंबली में जाके, सेगमेंट में जाके लोगों से चर्चा करेंगे कि आपको बजट में क्या करना चाहिए, और उसके बाद बजट का फाइनलाइजेशन होगा। ये एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है, ये रेवोल्यूशन है। एक तरह की आपके जितने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, गली गली जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनके बजट में उनका कैसे पार्टिसिपेशन होगा, उनका जो सजेशंस होगा बोले, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आपको लगता है पूरे देश में इसी तरह से होना चाहिए? देशमुख जी, बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी आपने, ये सच्चाई है। देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है, हम लोकशाही में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कहीं पे भी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, है ना, या केंद्र सरकार हो, ये किसके लिए बने हैं? केंद्र, हम सत्ता जनता के लिए, हम जनता ने हमको चुनकर दिया है, तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हम जनता से पूछे उनके क्या सवाल आते हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या प्रश्न है, और उनसे अगर जब पूछ के जब हमारा बजट हम बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि सही मायने में हम लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लोगों के जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने का काम हम कर सकते हैं। आगे जाके लोकतंत्र की प्रक्रिया है सर, ये वाकई में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है अरविंद जी ने कि हम तो सिर्फ हम आम आदमी के लिए काम करना चाहते हैं, ना हम किसी अदानी और अंबानी के लिए काम नहीं करना चाहते, हम किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं और ऐसे एक पार्टी के अध्यक्ष हैं जो आम आदमी को सामने रखते हुए काम कर रहे हैं। जो इस संविधान ने मतलब ये कहा है, संविधान के अंदर ये प्रोविजन है कि आप आम आदमी के लिए मतलब ये सत्ता बनी और आम आदमी के लिए काम कीजिए। महमूद देशमुख जी, आपने देखा कि 5 स्टेट में, जिसमें 4 स्टेट में जिस प्रकार से हुआ, 3 बीजेपी ने जिस प्रकार से 3 स्टेट जीता, बीजेपी 3 स्टेट जीता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसमें क्लियर कट एजेंडा क्लियर था। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी, अमित शाह जी ने हर मंच पे, एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी स्टेज, तीनों स्टेट में लगातार हिंदुत्व का जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने सबको कहा बार बार, चाहे वो तीनों स्टेट में हो, कि आपको 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण होने वाला है। 550 साल के बाद ये बहुत बड़ा एक चीज है और नरेंद्र मोदी जी ने हासिल किया है।
और कांग्रेस ने 70 साल से इसका खिलाफ काम किया है। तो ये एजेंडा सेट है। नरेंद्र मोदी जी हर मंच में कहा कि काशी विश्वनाथ भव्य बना दिया, उज्जैन महाकाल भव्य बना दिया, केदारनाथ भव्य हो गया, अयोध्या को हम भव्य बना रहे हैं और कृष्ण जन्म स्थान को भी भव्य बना देंगे। तो आपको देखो बात यह है, और चाहे वो गहलोत जी है, वो सबको मालूम है ये बहुत बड़ा फैक्टर था। कन्हैया लाल जिस प्रकार से इशू, पीएफआई का इशू, तो बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। तो आपको नहीं लगता कि बाकी पार्टी इसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा? देशमुख जी देखिए ऐसा है कि 22 जनवरी 2023 को जो प्रोग्राम होने जा रहा है ना, उसका इस देश के सभी नागरिक स्वागत करेंगे और इसका पूरा श्रेय जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, न तो नरेंद्र मोदी को जाता है, न भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वो अपने दिल से अगर कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो है वो केंद्र सरकार को नहीं जाता, वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। और वो एक अलग पहलू है। लेकिन देखिए, आस्था का विषय अलग अपनी जगह पे है और विकास अपनी जगह पे है। इस देश का विकास होगा, इस देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, इस देश के अंदर लोगों की अगर महंगाई कम होगी तो मतलब लोगों के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, लोगों के हेल्थ की अगर अच्छी सर्विसेज मिलेंगी तो देश का मतलब देश का कल्याण होगा या देश तरक्की करेगा। तो अब ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। ये हर मुद्दे पे, हर मोर्चे पे ये नाकामयाब रहे हैं। ये पिछले 9 साल, अभी 9 साढ़े 9 साल हो गए, ये इन्होंने 2014 से लेके 2023 तक कुछ नहीं किया है, देश को बर्बाद किया है। बल्कि आज देश मतलब जहां 54,000 करोड़ का कर्जा था, 54,000 करोड़ का कर्जा था इस देश के ऊपर, वो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। आप मुझे 2014 से लेके 2023 अगर आप देखेंगे, ये 1 लाख करोड़ का कर्जा मतलब बढ़ गया देश के ऊपर। तो इन्होंने तरक्की कौन सी की है तो बता दे, आप मुझे बता सकते हैं इन्होंने कौन सी तरक्की की? बल्कि देश को और खड्डे में डाला हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ के नाम पे, सुनिए सर, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बेच डाली, कई पोर्ट्स बेच डाले, हवाई अड्डे इन्होंने, एयरपोर्ट इन्होंने बेच डाले और रेलवे बेच डाली। ये सब पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। और बेचने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारे भाई बढ़ चुका है। लेकिन महमूद देशमुख साहब, ये सब चीजें जो है राजस्थान में भी बोली गई, मध्य प्रदेश में भी बोली गई, छत्तीसगढ़ में भी बोली गई, फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ऐसा क्यों? तो नहीं, देखिए अभी देखिए ऐसा है ना, मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए एक आम आदमी जो होता है वो आस्था पे चलता है। आस्था जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है सर। ईश्वर की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी, हर इंसान, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है हमारा, ये है ना। कोई किसी भी मजहब का इंसान होगा वो अपनी घर में अपनी तरीके से पूजा करता है, प्रार्थना करता है, वो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ पूजा और प्रार्थना करने से, इबादत करने से ही पेट नहीं भरता। ये थोड़ी दिन के बाद में लोगों की नजर आंख खुल जाएगी, लोग खुद रास्ते पे आ जाएंगे। अभी उन्होंने तो 2024 मई में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक आपके मुताबिक लोगों की आंखें खुल चुकी होंगी। बेशक ये 3 राज्यों का रिजल्ट आपको बता देगा सर। अभी इन्होंने जैसे कहा ना 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महाराष्ट्र में इनकी सरकार बैठी है, यहाँ तो ये 1100 में दे रहे, और यहाँ पे राजस्थान में जाके बेवकूफ बना रहे जनता को कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे। तो वादा अपने मैनिफेस्टो में बातें की है, तो वहां पर वादा किया ना सर, तो वहां वादा किया ना, यहाँ नहीं किया ना। मैं कहता हूँ यहाँ करना चाहिए। वहां पर अगर 450 में बेचेंगे तो यहाँ 1600 में बेचेंगे, क्योंकि वहां का घाटा यहाँ से भरपाई करनी पड़ेगी ना उसकी। आप भी मानते हैं कि मतलब ये क्या खेल खेल सकते हैं? नहीं, मुझे आप 2024 के तैयारी के बारे में बोल रहे हो देशमुख जी, मगर इंडिया अलायंस कहाँ बन रहा है ये सोचने वाली बात है। किधर है इंडिया अलायंस? आज शरद पवार जी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में बहुत व्यस्त थे, इंडिया अलायंस के बारे में सोचा नहीं, कहीं मीटिंग भी नहीं हुआ, कोई मीटिंग हुआ नहीं, लोगों से, जितने घटक दल के लोग हैं उनसे बात नहीं हुए,
कोई एजेंडा सेट नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट नहीं है। शरद पवार जी का कहना है कि आपको नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाना था, अपने कन्वेनर ने बना दिया, न कुछ काम हुआ है। और नीतीश कुमार के लोग खुद बोल रहे हैं कि देखो मोदी साहब ने जबरदस्त काम किया है, हमको सोचना पड़ेगा। उनके जो एमपी थे लोग वहां अखिलेश यादव कुछ और बोल रहे, ममता बनर्जी, उनको कैंसिल करना पड़ा। उनका जो इंडिया अलायंस का मीटिंग गए हफ्ते थे उसको कैंसिल करना पड़ा। तो कहां एक साथ कब आएंगे? कभी कुछ एजेंडा तय होगा, कभी सेट होगा नैरेटिव, कभी तो कैसे एक दिन में? बिकॉज टाइम कितना है, दिसंबर हो गया, 5 महीने में चुनाव है। अभी आपका एक ढंग से मीटिंग भी नहीं हुई इंडिया अलायंस का। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि पार्टीज जो ऑपोजिशन पार्टीज है बहुत लाइटली ले रहे हैं इलेक्शन को, किसी को पड़ी नहीं है? हाउ डू यू सी देशमुख जी? ऐसा है प्रदीप जी, अभी ये 5 राज्यों के चुनाव थे, इसके लिए सभी पार्टियां वहां पे बिजी थी। और मैं समझता हूं कि अभी चुनाव खत्म हो चुके हैं और बहुत जल्द ही मतलब इसके ऊपर सभी पार्टियां, अलायंस पार्टी जो है वो अपनी मीटिंग करेंगे और एक स्ट्रैटेजी बना के उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक कुछ तो रूमर भी फैलाए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये आपस में मतलब एक भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं ये सब साथ में मिलकर काम करेंगे। और ये इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी में इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जैसे सबसे पहल तो उन्होंने की थी इंडिया अलायंस बनाने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहल करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ में लेके चलना चाहिए। और जिस तरीके से लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जब आपने कहा था कि भाई कोई किसी को गिनता नहीं, तो ये एक चीज है। ये 3 राज्यों का या 4 राज्यों का जो भी मतलब रिजल्ट है, मिजोरम को जाने दीजिए, कांग्रेस तेलंगाना में आ गई है, एक वो अलग फैक्टर है। लेकिन 3 राज्यों का रिजल्ट को देखते हुए, सामने रखते हुए, मैं समझता हूं कांग्रेस ने भी मतलब सोच समझ के भूमिका लेनी चाहिए। सभी अलायंस पार्टनर का मान सम्मान करते हुए सभी को साथ में लेके चलने की कोशिश करना चाहिए। अगर इस देश के अंदर हमें बदलाव लाना है, आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो ये भ्रष्ट सरकार है, मैं कहूंगा तड़ीपार सरकार जो है, रंगा बिल्ला की सरकार जो है, इनको अगर बाहर करना है तो मैं समझता हूं कांग्रेस ने एक बड़ी अच्छी भूमिका लेनी चाहिए। सभी अलायंस पार्टनर्स जो है वो फिर हमारे राष्ट्रीय, हमारे मान लीजिए महमूद देशमुख साहब, अरविंद केजरीवाल जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार जी हो, महाराष्ट्र में शरद पवार जी हो, मान लीजिए महमूद देशमुख साहब, अगर मान लीजिए आप सफल नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी फिर जीत करके आती है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की खुद ब खुद 350 से ज्यादा सीटें आएंगी, फिर क्या? देखिए सर, ऐसा है ना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए जी। चुनाव जो है एक, देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। इस सिस्टम को जिंदा रखने की भी जरूरत है। चुनाव तो लड़ना होगा। सत्ता में तो कोई एक पार्टी आती है, दोनों पार्टियां तो सत्ता में आती नहीं है। कोई पार्टी, एक पार्टी रूलिंग में आएगी, सत्ता में आएगी, दूसरी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। ये तो चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस को हम लोग खत्म कर दें। ये जरूर है प्रदीप जी, very my own personal opinion is that they should all follow the केजरीवाल मॉडल। जो केजरीवाल मॉडल है वो बेस्ट है पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि सामने आपके पास एक रिलीजियस मॉडल है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मॉडल है। हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ा दो, राम मंदिर की बात करो, हर जगह जाके जय श्री राम का नारा हो। हाँ, ये बात ठीक है, उन्होंने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस उन्होंने पूरे किए हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने रिपील किया, 35A रिपील किया, राम मंदिर बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उसका जो मॉडल होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव मॉडल, ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी, वो जो केजरीवाल मॉडल है डेवलपमेंट का, दिल्ली और पंजाब का, वो होना चाहिए। अगर उस पर काम किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सफलता मिलेगी इंडिया अलायंस को। आपको क्या लगता है महमूद देशमुख साहब? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का जो ये मतलब मॉडल है ना, ये इन्होंने अपनाया जी। हमारा ही फार्मूला था, ये वहां पे अपनाया, कांग्रेस वहां कामयाब हुई
तेलंगाना में भी वही चला। और जहां पे आज आपने सुना होगा मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, गारंटी ये जो शब्द था ये अरविंद केजरीवाल जी का शब्द, दुरुस्त बात है ना? करेक्ट। आज इन्होंने उसका भी नकल कर लिया। तो ये सही बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसको अगर पूरे देश में इंडिया अलायंस अगर अपना लेती है तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर देश का नक्शा बदल जाएगा, एक सिनेरियो कुछ और होगा उस वक्त। लेकिन ये सब बातें जो है ये सभी ने मिलकर करने की है, मैं मेरे कहने से नहीं होगा, ये सभी अलग पार्टनर कहीं ना कहीं से बात तो शुरू हो सर, आप ही से शुरू हो, कोई बात नहीं जी। प्रदीप एक चीज है जो फ्रैंकली एक चीज बोलना चाहता हूं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा ये भी था, अमित शाह जी हर मंच से ये बोल रहा था इलेक्शन के दौरान कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हम रद्द करेंगे और ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन ओबीसी, एससी और एसटी को देंगे और उनका कोटा बढ़ा देंगे। और कोई भी पार्टी ऑफिशियली इसका विरोध नहीं किया। ये दुख की बात है कि बीजेपी एक तरफ से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हटा देंगे, कोई भी पार्टी पूरे इलेक्शन के दौर में इस चीज का विरोध नहीं किया कि ये गलत है, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ये आपको नहीं लग रहा कोई कॉन्क्रीट स्टैंड जब कोई लेता नहीं लेता, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई विरोधी पक्ष जितने भी थे, somebody has to take a stand। कोई स्टैंड तो होना चाहिए कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन आप कैसे रद्द करोगे, ये पूछने वाला कोई नहीं है पूरे इलेक्शन के दौरान। आप इसको कैसे देखते हो महमूद देशमुख जी? पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बट जो है उसको देखिए सर, ऐसा है, सुनिए, माइनॉरिटी को किसने कहा कि 4% रिजर्वेशन दिया गया? कहां है रिजर्वेशन? तमिलनाडु में रिजर्वेशन है, बाकी पूरे देश में कहीं रिजर्वेशन नहीं है। तो ये देने की जब दिया ही नहीं है तो ये कौन सा रद्द करेंगे? और मैं आपको कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनसे तो हम उम्मीद ही नहीं करते हैं ये माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देंगे। और रही बात ओबीसी की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बात करना चाहता हूं, जब मंडल आयोग का विरोध किसने किया था ओबीसी समाज के आरक्षण के बारे में, जब मंडल आयोग ने रिपोर्ट सबमिट किया था, है ना, वीपी सिंह के टाइम में, तो वीपी सिंह का समर्थन यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन निकाल के सरकार गिराया था। ये भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी के भी खिलाफ है, ये ओबीसी के समर्थक नहीं है। आज ये मतलब मगरमच्छ के आंसू दिखाते रोते हैं वोट बैंक के चक्कर में कि ओबीसी को, मतलब हम ओबीसी के हम हित चिंतक है, वेल विशर्स है। तो जिस वक्त मंडल आयोग मतलब लागू हुआ था, मंडल आयोग का मतलब रिपोर्ट लागू करने की बात आई थी, तो उस वक्त भी इन्होंने विरोध किया था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने विरोध किया था मंडल आयोग का। तो मंडल आयोग का तो रिपोर्ट ओबीसी के समाज के लिए ही था ना। और उस वक्त मतलब यही शरद पवार साहब थे जिन्होंने मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसको मतलब लागू किया इस महाराष्ट्र में। लेकिन उस दौरान जो आज छगन भुजबल जी भी जो है वो विरोध में थे उस वक्त ओबीसी समाज के रिजर्वेशन के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी किसी समाज की नहीं है। अब एससी एसटी की बात आप करेंगे तो पूरे देश में या एससी एसटी समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है इनके राज्य में। घोड़ी पे अगर कोई चढ़ जाता है दूल्हा तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स में बड़े ताज्जुब की बात है महमूद देशमुख साहब, मध्य प्रदेश में वो फुटेज आई, मध्य प्रदेश से वो फुटेज आई, वो बेचारे आदिवासी के साथ क्या कर रहा है वो अफसर बीजेपी का जी। और दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये चमत्कार कैसे हो गया सर, जरा बताया जाए। अरे सर, ईवीएम का भी चमत्कार हो सकता है या डर भी हो सकता है ना, डर भी तो हो सकता है जी। ये भी गरीबों को डराया भी तो जा सकता है ना, ये क्यों नहीं आप समझ रहे जी? हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब वो तो गरीब लोग हैं, आदिवासी पाड़े में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको डराया भी हो सकता है, डराया भी जा सकता है। मगर देशमुख जी, सुप्रिया सुले जी ने यहां पर कहा कि फडणवीस जी मराठा आरक्षण के खिलाफ ही नहीं, उन्होंने दांगर कम्युनिटी के आरक्षण के खिलाफ, लिंगायत कम्युनिटी के खिलाफ और मुस्लिम रिजर्वेशन में भी 4% सुप्रिया सुले जी। और इसको जस्टिफाई किया पृथ्वीराज चौहान जी ने। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा 4% मुस्लिम रिजर्वेशंस को ये सरकार ने अंडर द कार्पेट धकेल दिया है। नाउ दिस इज अ सीरियस थ्रेट। चार्ज महाराष्ट्र में भी 4% रिजर्वेशन के बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा, सुप्रिया सुले जी ने कहा, कहां पर अटका हुआ है देशमुख जी? और कोई वोकल क्यों नहीं बोल रहे खुलेआम? देखिए ऐसा है कि
उस टाइम में तो पृथ्वीराज चौहान जी ने जो कहा वो सही है कि 16% मतलब मराठा आरक्षण था और 5% मुस्लिम आरक्षण था, वो सरकारी नौकरियों में और एजुकेशन के मामले, वो भी इन्होंने मतलब कैंसिल किया। वो तो कोर्ट में ही नहीं टिका मैटर, वो अलग बात है। अब उसके ऊपर कोई पार्टी ये बहस बात नहीं रख रही है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति का मसला है कि वोटों का पोलराइजेशन जो होता है। आज अगर कोई पार्टी अगर माइनॉरिटी की आवाज उठाती है, उनको ऐसा डर लगता है कि भाई हम माइनॉरिटी की आवाज उठाएंगे तो मेजोरिटी के वोट हमसे सरक जाएंगे। तो आज माइनॉरिटी के बारे में माइनॉरिटी को भी फिर एक बार सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ अलग अलग पार्टियों में जो माइनॉरिटी के जो नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने एक फोरम पे एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अपनी पार्टी लाइन से हटकर माइनॉरिटी के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि माइनॉरिटी का कोई ना कोई तो आवाज उठाने वाला होना चाहिए। अब आप पार्टी की बात करेंगे तो मैं समझता, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी आज देश के अंदर माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही है। तो आप इसीलिए तो ये हालात में आज माइनॉरिटी है। बद से बदतर हालात में मुस्लिम समाज इसीलिए है क्योंकि उनका मतलब रहबर कोई नहीं बचा है, उनका मसीहा कोई नहीं है, सब अपने अपने रोटी पे दाल सेक के नेता बने हुए हैं। देशमुख जी, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटी के आरक्षण के लिए मैं काम कर रहा हूं, कुछ मामले में मेरा स्टडी चल रहा है और उसके बाद में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। देशमुख जी, और आप बोलिए। और मुस्लिम समाज को भी एक बार सोचने की जरूरत है कि भाई जो आज कई लोग जो मतलब इनके पीछे भाग रहे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है कि भाई हमारी लड़ाई, हमारा हक कौन दिला सकता है, वो देखने की जरूरत है। अभी आम आदमी पार्टी ने जो स्टैटिस्टिक्स है, सरकारी स्टैटिस्टिक्स निकाला कि 2022 में 2022 में दंगे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। आम आदमी पार्टी आज सब जगह प्रोपेगेंडा, दिल्ली हो, अलग अलग जगह पे ये दिखा रहा है कि सरकार का ही स्टैटिस्टिक्स है कि महाराष्ट्र में 2022 में सबसे ज्यादा पूरे देश में दंगल हुआ है, दंगा। तो इस चीज को कैसे, तो डज इट रिफ्लेक्ट ऑन दिस गवर्नमेंट? देव फडणवीस जी पे रिफ्लेक्ट होता है, किस पे रिफ्लेक्ट होता है? जाहिर सी बात है, होम मिनिस्टर वो खुद है, देवेंद्र फडणवीस जी इस राज्य के होम मिनिस्टर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और फेलियर भी उनका ही है। अगर दंगा फसाद हुआ है तो फेलियर उनका है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी उसके लिए जिम्मेदार है। और ये प्री प्लान करवाया जा रहा है सर, ये ऐसा नहीं है। अभी लास्ट में बीच में प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा ना कि 3 तारीख के बाद में बहुत कुछ हो सकता है, तो इसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने संज्ञान लेने की जरूरत है कि अगर वो प्रकाश आंबेडकर जी कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं, और अगर उन्होंने गलत कहा है। Sir, your voice is gone. I can't hear Mr. Mehmood Deshmukh. Well, Mr. Mehmood Deshmukh was very, very, very vocal, very straight, and very articulate. Believes in what he says. I hope and pray that the Kejriwal model gets actually officially adopted by the India Alliance. Of course, it will be bad for Kejriwal because the AAP will have nothing, really nothing left with. जी, आप कुछ बोल रहे थे देशमुख साहब, बोलिए. Can't hear him again. He's getting calls. I think he's getting calls from everywhere, but that's it. That's just about it as far as tonight's show is concerned. Mr. Mehmood Deshmukh was quite articulate and very, very clear. But it is surprising, isn't it, Pradeep ji? Yes. Here we see a BJP leader urinating on an Adivasi, and the Adivasis vote for the BJP. Well, wonders never cease. Yes, It's exactly. unbelievable. I mean, so the entire focus, I mean, if BJP does it, now Ayodhya, जनवरी में जिस प्रकार से भव्य तरीके से वो राम मंदिर का निर्माण का बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गोइंग टू बी अनदर इशू, एंड द सीएए, यस, तो ये ऑपोजिशन और इंडिया अलायंस मीटिंग करना चाहिए। इलेक्शन क्या, लेट्स आस्क मिस्टर देशमुख साहब, आखिरी सवाल, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान पूजा जो है 22 जनवरी 12:22 को होने वाली है, उसके बाद हर जगह पर जुलूस निकलेगा, हर जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, पूरे देश में न जाने क्या कुछ होगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे हर जगह पे, जय सिया राम होना चाहिए वैसे, लेकिन हर जगह पे वही लगेगा। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जाएगा और सीएए
वो भी आएगा, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी कानून बना दिया जाएगा। कैसे लड़ेंगे उससे सर? आखिरी सवाल है। नहीं, ऐसा है, देखिए अभी पहली बात तो जैसे अभी आपने कहा 22 जनवरी का, तो उसके लिए किसी को कोई एतराज तो है ही नहीं। अच्छी बात है, वो काम करने जा रहे हैं, सीधा जो भी वहां पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, तो उसका पूरा देश वेलकम करेगा, उसके लिए कोई किसी को कोई एतराज तो है ही नहीं। रही बात कॉमन सिविल कोड की बात आप जो कर रहे हैं जी, तो ठीक है, ये आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। इतना आसान तो नहीं है जी, कॉमन सिविल कोड, इतना आसान नहीं है, जो बोलते हैं इतना आसान नहीं है। कानून बनाना एक अलग चीज है और इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज। दुरुस्त बात। हाँ, तो इतना आसान नहीं है, अभी देखते रहिए। ये सिर्फ ऐसा है कि अभी अलग अलग इश्यूज ये रखेंगे लोगों के सामने, और आने वाला 2024 जो है वो चुनाव इनकैश करने की कोशिश करेंगे। ये भावनाओं के मतलब लहर पे ये जीतना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लहर लहर होती है, लहर ज्यादा देर नहीं चलती है, ये थोड़ी देर की बात है। और जब चुनाव जब सामने आएंगे तो अपने आप लोगों को अपने सामने, उनके सामने जो लोगों की जो मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि भाई ये सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलते हैं और लोगों की भावनाओं को भड़का के ये सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, और बाद में जो होता है वो सब पूरे देश ने देख लिया है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी कर ले तो आने वाले 2024 में इसका कोई भी असर नहीं होगा। 2024 में इनको जाना ही होगा, ये तय है। ऑल द वेरी बेस्ट सर, बेस्ट ऑफ लक टू यू, द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह काम करते रहें गरीब लोगों के लिए। आप इस पहली बार है कि हम लोगों ने स्लम ड्वेलर्स के बारे में बात नहीं करी, हमने मुंबई के स्लम्स के बारे में, झोपड़पट्टी के बारे में बात नहीं करी। अगली बार जरूर करेंगे, क्योंकि अभी क्या था कि चुनाव के बारे में बात करना बहुत जरूरी था, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी था। चुनाव के बारे में बात कीजिए, कोई बात जी, लेकिन अगली बार जरूर स्लम्स के बारे में बात की जाएगी, असल में वास्तविकता में वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज तो है, वो मंडेलिया साहब जो थे वो जीते कि हारे, कि क्या खबर, क्या हार गए। चलिए ये लोगों की दुआएं लग गई, हार गए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिला हुआ है बैंड्रा वेस्ट के मैटर में। क्या बात है सर, लोगों को ये और मंडेलिया जी के साथ आपने सुना नहीं, बैंड्रा वेस्ट में जो डिमोलिश होने वाला था वहां पे स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। गौतम पटेल साहब के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बेस्ट न्यूज ऑफ द डे, वंडरफुल। और मंडेलिया जी के पीछे आपका शुभकामनाएं बहुत थे जी, सभी की शुभकामनाएं, सभी की दुआएं थी सर जी, बिल्कुल सभी ने दुआएं मांगी थी। दुरुस्त बात। चलिए, thank you so much sir, great pleasure talking to you and congratulations once again for getting a stay on the demolition or otherwise of that Bandra West slum. Thank you very much sir. Namaskar. नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। Thank you so much sir. Well, I didn't know that's really very good news indeed. Great news. That is fantastic news. The Supreme Court has actually given a stay. Now that is wonderful. That is really and truly wonderful. Yeah. Fantastic. Here we saw the government was not responding. Yes. Administration not coming to their and the Bombay High Court treating the matter with utter whatever. But Bombay High Court did not take the petition very favorably. But the Supreme Court has given a stay, and that is really good news. Fantastic work. Right? You do. I think we have some responses that we must read out today. कुछ response आए, देखते हैं आज क्या। आप अपने comments भेजते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, if you haven't done so already, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन जो है उसको क्लिक करें ज़रूर, and if you want to share it, that would be nice. But do subscribe to the channel. It is your channel. ये अकेला चैनल है जहाँ पे हर एक को पूरा मौका मिलता है अपनी बात कहने का। हम बीच में टोकते नहीं है, रोकते नहीं है साहब। Now let's take a look at some of the comments which have come in, and do keep sending in your comments. We love reading them out right over here. भरत सिंह जी, कांग्रेस रेडी फॉर एवरी चैलेंज। ये तो भरत सिंह जी हैं, कल आए थे शो में। नाइस डिबेट, वेरी मैच्योर एंड एक्सपीरियंस पर्सन पार्टिसिपेंट्स इन दिस डिबेट, एवरी सिटीजन शुड बी अंडरस्टूड। मोहम्मद मुजीब साहब लिखते हैं 367। थैंक यू मुजीब साहब, मोहम्मद मुजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका कि आपने, किसी ने तो तारीफ करी।
Alia Bhatt's darling director Jamshed Reen to direct Madhubala biopic. Somebody's making a biopic on Madhubala. Alia Bhatt is best for this role. Says Forever Blink 7159. I thought they were taking that other girl, that Kriti Senon or something like that. And in any event, let's move forward. But nobody can actually play Madhubala. No one can play Madhubala. Mr. B.N. Kumar, Ulve Balaji Temple. We want Balaji Temple in Ulve. That's it. Shubham Kurade 4501. We want the temple. Yes, that's what he says. That's it. A lot of reactions on that. Good. Let's move forward. We want Balaji Temple in Ulve. Mr. Shubham Karade again. I think our boys like it too. I think the production team also wants the temple. G. Ram Mandir with Modi magic sweeps Congress. Nation Now, previously known as RKB Show, is always stand against injustice. We, Andheri East resident, had a very pleasant experience with Nation Now. All the best, sir. ये कौन है? Ruchin Adhuria 946. Thank you very much, Mr. Adhuria. Please do send it. This is the RKB Show on Nation Now. Nation Now भी है, RKB Show भी है. Advocate Arbaz Pathan is doing a wonderful job. We need more lawyers like him in the society. India should be very safe space for foreigners and tourists to come and work and stay here. Atithi Devo Bhava. ये कौन है साहब? ऋषभ कानवा साहब लिखते हैं. ऋषभ कानवा साहब. Singham again. Ajay Devgan gets injured while filming a fight scene. He got injured. Oh God. What is that supposed to be? Fire. Ajay Devgan is fire. Right? Javan Jadhav. 58. And this is Deepshika. This was about Deepshika. Lovely girl. She's been in the film industry. Ayub Khan साहब जिनकी उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी. Dearest Deepshi, absolutely humbled with the respect and love you have for me in your life. Please know that you have the absolute same place in my heart too. May the Almighty bless you with His choicest blessings always. So nice of Mr. Ayub Khan. Well, she did praise him. Yes. There was one more who had come in I for think environment issue. Yes. No, for Mr. Arbaz Khan. Okay. Where Mr. Just one second, I'll just check it out. Where the gentleman actually said that good to see you, supporting the victim. That's what they said. I don't know why that has not been taken. Yes. I still remember that. The environment also was there. Yes, a couple of other things were on the environment. These are the guys who are stifling development. Yes. I really wonder why that was not taken. Isn't that strange? What do you think, Pradeep ji? Yes. Maybe our guys don't like all these guys. Maybe our production guys think that this is crazy, absolutely crazy. That's what they think. Yes. Right. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. हर हर महादेव. Har Har